I'm working with Acco, Farmizi, Wigfit, Acco Drive, Razorpay. These are massive powerhouses. वो CMO वहाँ पे जो बैठा हुआ है आपसे सीधा मुंह बात नहीं करेगा अगर आपका डेजिग्नेशन देख गया और आपका मुंह अगर बेबी फेस है. That's the reality. Today we have Sindhu Biswal, founder of BuzzLab Global. He has worked with clients like Filtercopy, Paytm, Raj Shamani and Finance with Sharan. When you say scale and helping people like scale agencies, what do you really mean? Scale का मतलब क्या है यहाँ पे? You did not start an agency because you wanted to build an agency. You started an agency because that was a natural extension कि मैं खुद कर रहा था, इतना कमा रहा था, चलो दो लोग लगाता हूँ और इतना कमाऊंगा. हर तीसरा बंदा एजेंसी ओनर, हर तीसरा बंदा फ्रीलांसर है, हर तीसरा बंदा सर्विसेज बेच रहा है, लेकिन कोई नहीं बेच रहा है. ठीक से. What's wrong in the agency world right now? If you are right out of your college, do not start an agency. Agency in very simple terms is human arbitrage business. That's it. Majority of the agency building is not just कि काम कितना बढ़िया है. It is people. पॉडकास्ट और इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस है दोस्त. What Joe Rogan does is podcasting. इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे इंसान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, उसके बाद बोर हो जाएगा. हम स्टार्स को नहीं छोड़ते हैं. आप पॉडकास्टिंग की बात कर रहे हो, आप सबसे जल्दी निकलोगे. कोई कम्युनिटी किसी का सगा नहीं हो. What do you think brands should do right now with content, and what do you see as the future in the next 5 years? Let me start by saying hire. Like when you say scale and helping people like scale agencies for that matter, what do you really mean? Scale का मतलब क्या है यहाँ पे? What is your definition of agency business model? If you have to simplify. Yeah, if I have to really simplify, it's high PAT. So which means PAT is something that you need to focus. Yeah, right. Absolutely. When you're focusing on PAT, there are two ways. If you look at Indian history or any other history, agencies are always bought. There is something called network agencies, legacy agencies. Like there is a WPP, there is a Lintas, there is Ogilvy and all. And if you go and check agency structures, you will see world के top 4 largest conglomerates are there. There is a Publicis Group A, there is a WPP and there are 2 others. मुझे exactly नाम नहीं पता. And वो लोग holding companies पकड़ते हैं. Correct. Anyone who builds an agency from a business POV is either doing a passion project and they are like कि मुझे ये आता है. So a person who is a production guy says कि okay मैं production इतने टाइम किया freelancing, let me start. That is a natural progression. But इसमें problem क्या है? You did not start an agency because you wanted to build an agency. You started an agency because that was a natural extension कि मैं खुद कर रहा था, इतना कमा रहा था, चलो 2 लोग लगाता हूँ और इतना कमाऊंगा. Traditionally, when anyone in India was building an agency, was coming from some passion project, but also was coming from massive scale करना है. Like massive scale. And जितने भी top shot agencies हैं, चाहे Web Chutney, converted into Talented right now, these are all massive scale. Now PAT plus scale, like for an example Shebang. Now if you go and check Harshil ka podcast, if I'm not wrong, he was mentioning he does somewhere around 15 to 18% gross profit at a 300 crore ka scale. And then he states a line which is either you look for 40% gross profit and stay happy, or you look for massive scale because you want an exit. And an exit happens if someone takes you. So you have to decide which kind of game you are playing. That's all. So you mean is basically if you are going for scale, then you have to go for an exit wala scale. Yeah. There is no other way. Matlab, so either you are building business like a businessman, or you are building business as a skill person. Or lifestyle business. Or a lifestyle business in a way. Now here comes a new hybrid structure which I feel that I am trying to build, which is agency is just one vertical then. So what I am building right now is one part is agency, one part is a content creative school, one part is a media business which is launching new channels, and then suddenly my gross profit looks a centralized gross profit. That okay, my content marketing school either needs to solve supply or demand for this, exactly like for an example, let's say an AEOS business model, Varun Maya business model. It's almost similar for an example. And an AVTV creates supply issue, solve supply issue that gets resolved by launching an agency on top of it. Now, when you zoom out, it makes absolute sense of looking at the PAT. Because agency are always, like I think agency in very simple terms is human arbitrage business. That's it. You have to poach great talent and make sure they stick with you by doing bunch of stuff. So you have to make sure editors stick with you. I have to make sure, let's say, writers stick with me. एंड मेरे राइटर्स जितने अच्छे होंगे मेरी एजेंसी भी उतनी अच्छी होगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरा राइटर आपके पास चला गया, आपके पास एक अच्छा टैलेंट आ गया इन दैट केस.
Now you are basically hoarding talent. That's all. Yeah. Now I'm like, if I am hoarding India's best talent, I don't know any other way rather than scaling, or I say that, hey, I will do a 1% business. Great business. Like for example, what you are doing. I think it's a great model. But then वो गलत फहमी मत लेना कि मैं बीच में कुछ निकालूंगा कि 80 लोगों की टीम बनानी है और स्केल करना है, because then you will fall into the rat race of why the hell am I scaling for? So what do you mean? You say या तो फिर under 12 people row, because if you see no Daniel Presley by any chance. I've heard of him, not researched enough, but yeah. So he said either you be below 12 or you try to make more than 100. Correct. So in India, you can't be just 12. So it depends on the kind of clients you are doing. So for an example, I'm working with Acco, Pharmacy, Wakefit, Acco Drive, Razorpay, India's top. These are massive powerhouses. I cannot service or deliver great stuff without having an Ogilvy. So my agency structure is basically my heads are ex-Ogilvy India head. Oh damn. How many people do you have? So I have 20 right now, where 5 people are 20 years work ex. They are the senior leadership. So senior director of Didensu, Ogilvy ka India head, Group M ka ex India head and all stuff are my leadership of operations, client servicing and account management. Because you cannot service India's top company by putting Gen Zs quote unquote, unfortunately. That is the reality. It is not that they lack work ethic and that is a separate conversation. But the point is ये power game है. वो CMO वहाँ पे जो बैठा हुआ है रिलायंस का फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे सीधा मुँह बात नहीं करेगा अगर आपका डेजिग्नेशन देख गया और आपका मुँह अगर बेबी फेस है, लेट्स से. दैट्स द रियलिटी. People have some bit of respect for me because I have 15 years of work ex. I come from the brand side. I can speak that language. I'm an ex-Paytm, blah blah blah. Finance में लोग मुझे मानते हैं because they are like, okay ठीक है, इसको इंडस्ट्री का नॉलेज है इसमें. So there you will need at least 25 people if you are playing the large game, or small tickets, medium tickets khelo. So I am trying to play premium to ultra premium ticket. What does that look like? So you can consider a premium to ultra premium ticket monthly minimum being an 8 lakhs, max being a 20 lakhs. So let's suppose 8 से 20 लाख के आसपास का जो range होता है, इसमें deliverables कैसे look like? So our deliverables is different because what we are doing is something different. Because you mentioned 8 lakhs is subscription based. 8 lakhs. So yes, okay. It's a retainer. So इस retainer में क्या होता है deliverables, या फिर किस तरीके से how do you like present yourself? हाँ, so मैं presentation पहले बोल लेता हूँ. पैकेजिंग क्या है? मार्केट का नीड ये है कि there are delivery agents, there are Instagram डिलीवरी पीपल. हम बढ़िया इंस्टाग्राम करते हैं. देयर आर यूट्यूब एक्सपर्ट्स हु विल से मैं बढ़िया यूट्यूब करता हूँ. मार्केट में गैप वो नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर सेलिंग वेंडरशिप सर्विस, देयर विल बी ऑलवेज 5 अदर पीपल हु विल डू बेटर वर्क देन यू एंड हु विल डू लेसर प्राइस में वर्क देन यू. आई एम एसेंशियली सेलिंग content led growth as a service. So what I do is I go and say, show me your internal P&L, शो मी योर इंटरनल मार्केटिंग का पूरा फनल. मैं बताऊंगा क्या चाहिए वहाँ पे. गैप्स कहाँ पे हैं. नाउ देयर कुड बी, आई विल फिगर आउट, थोड़ा इन्फ्लुएंसर करना चाहिए टू फिगर आउट ऑफ फनल. ये मेट्रिक मेरा KPI है, मैं इस KPI को मूव करूँगा. थोड़ा सा यूट्यूब करना चाहिए, थोड़ा सा पर्फ करना चाहिए, थोड़ा सा ये करना चाहिए. सो आई विल मेक कस्टम समथिंग फॉर वन पर्टिकुलर एरिया एंड दैट विल बी डिफाइंड कि मैं हर मंथ उसको जज भी कैसे करने वाला हूँ, ऑप्टिमाइज भी कैसे करने वाला हूँ. That is a good thing and bad thing for me. Good thing is मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हूँ CEO से, मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हूँ CMO से. आई हैव मोर पावर, आई हैव मोर प्राइस कमांड एज वेल, एंड आई हैव अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि कोई और आके बोलेगा मैं यूट्यूब सर्विस करता हूँ, आई एम लाइक हैप्पी टू पार्टनर विथ यू, बिकॉज मेरा कोई ऐसा अलीजेंस नहीं है दैट हे सब कुछ मुझे ही करना है. आई विल डिसाइड कि ओके अगर मैंने ये प्लेबुक बनाया है जो इसके लिए काम करेगा, बिकॉज मेरा मोट इज आई हैव टेकन द ownership of number movement. So I'm not building just a YouTube channel for sake of it. मैं simplified example लेता हूँ. YouTube channel building में अगर आप हो, if you don't know internal brand manager अपने boss को justify कैसे कर रहा है. So for an example, they have spent let's say 1 crore for 1 year. But if you don't know that the internal justification is how many brand searches did move, how many brand searches Google Analytics में it is showing, what is my direct traffic, उसको pat on the back किस चीज़ में मिलेगी. And if you don't know that उसको किस चीज़ में मिलेगा and you don't have a say, आपका नंबर आएगा
बहुत जल्दी आएगा द मोमेंट समवन एल्स कम्स एंड से मैं सस्ते में कर दूंगा. आई एम इन दैट बिजनेस ऑफ फिगरिंग आउट कि उसको पैट इन द बैक किस में मिलेगी और उसका OKR भी क्या है. सो आई रियलाइज्ड इन द मार्केट गैप विच इज ब्रांड मैनेजर्स हैव नो आइडिया हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इन्फ्लुएंसर को कैसे जस्टिफाई करना है, परफॉर्मेंस को कैसे जस्टिफाई करना है, यूट्यूब को कैसे जस्टिफाई करना है. सो आई एम इन द जस्टिफिकेशन बिजनेस प्लस फिगरिंग आउट डिलीवरी कैसे होगी प्लस फिगरिंग आउट कौन करेगा. एंड आई हैव नो एलिजेंस टू एनीवन. So in a way, you're a consultant. आई एम इसलिए मैंने बोला कॉन्टेंट लेड ग्रोथ एज अ वर्ड आई ट्राई टू डिफाइन इट. सो अगेन पॉडकास्ट इज अ फॉर्मैट. पॉडकास्ट इज नॉट अ सर्विस, इट्स अ फॉर्मैट टू अचीव समथिंग. Yeah, absolutely. So I am like, let me define what will achieve what, and when that what is decided, then I will So you figure out. reverse engineer. I reverse engineer. Correct. Got it. So when you say, let me justify this, so you are not doing any particular service कि ये 15 content देंगे जी इसका 8 लाख रुपए Exactly. वो सब कुछ नहीं है. हाँ. वो सब कुछ नहीं है. How do you then sit around with your client? Like how often these meetings occur? Client के साथ कितने meetings होती हैं फिर? Every day we are in direct touch. अच्छा. Every day we have a. और ये daily- metrics और data पे like when do you guys sit around and talk? Every 2 days तो almost. like how does it look like कि मैं अभी क्लाइंट मेरा क्लोज हुआ आज, ठीक है, उसके बाद हम अगले 15 दिन बैठ के ये करेंगे, KPIs डिसाइड करेंगे कि इससे ये KPI से, फिर वो 15 दिन निकल गए, मतलब आधा महीना निकल गया, 4 लाख रुपए का उसका बिल अभी तक बन चुका है. राइट. Correct. आर दे ओके विद? No. So इसीलिए if a McKinsey comes on board, so the way I define it is इंडिया में या वर्ल्ड में McKinsey बिजनेस कंसल्टिंग करता है. कंटेंट अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो, कंटेंट मूव्स बिजनेस. कंटेंट इज नॉट फॉर जस्ट फन. सो द वे आई डिफाइन इट इज वेरी सिंपल. एक जाना लेट्स से कैफे में, और एक कैफे में लेट्स से एक कैपेचिनो का एक वर्ड लगा हुआ है, लेट्स से पिस्टाचियो कैपेचिनो. उसका नाम खाली बदल दो, पिस्टाचियो फ्रैपेचिनो. 20 रुपीज़ इंक्रीज कर दो, ऊपर फोम डाल दो. उसमें क्रेडिट आप किसको दोगे? कॉपीराइटर को दोगे या स्ट्रैटेजिस्ट को दोगे? स्ट्रैटेजिस्ट. बट इसमें तो कॉपी का चेंज हुआ. सो विच मीन्स कंटेंट डिड मूव अ फनल. इसको कभी ऐसे देखा नहीं गया था. कॉपीराइटर्स ने कभी अपना जो पावर है कभी आउटकम के एंगल पे कभी देखा ही नहीं. कि इफ आई पर वर्ड चार्ज कर रहे हैं, वो पर वर्ड चार्ज करते हैं, तो वो हमेशा इनपुट पे चार्ज किए हुए हैं, कभी आउटपुट पे चार्ज नहीं किया. और वो क्यों भी नहीं किए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है ना आउटपुट कैसे मूव होती है. बात ये है. और ऑब्वियसली फटती भी है, बट उसको समझने के लिए भी आपको यू नीड टू हैव अ कंप्लीट माइंडसेट. But that's the thing, na? You have 15 years of experience to it, and that's when you can go to a client and say कि I will do growth-led content. Correct. Somebody who is just starting out, it's very hard for them, and it's not even for them. Somebody starting out cannot be Sindhu for that matter, right? And it's a good freelancing. So somebody starting out, again slightly But off what's your topic. goal with this? Mine, nothing, just having fun and seeing if I can be a good business person or not. So you said जैसे as you discussed, yeah, 12 से कम या फिर then you go shebang mode, right? Where do you lie? I have existential crisis right now, with all honesty. I think I am in the middle of right now 20 से मुझे 100 जाना है in the next 1 year. That's the first plan. I don't know if I want to go 1,000. I don't know. क्योंकि शबांग 1200 लोगों की कंपनी. शबांग 1200 लोगों की कंपनी है. The moment you scale, you will have to decrease your pricing point because market में economies of scale तभी आएगा. I don't know. Let's see. I have not figured out that yet. But how hectic is like managing a 12, because you've seen abhi you are at 20, and as you said, these people that you've onboarded, इनको onboard करना as employees कितना मुश्किल होता है? See, I have to go and convince 20 years of WorkX people who were senior directors of Ogilvy. Don't they look at your baby face and say कि यार तुम क्या हर साथ क्यों काम कर रहे हो? Fortunately, it has been the other way around. They wanting to work with. Why so? I'll tell you my pedigree, and I think that has always worked for me. And I think थोड़ा lucky भी हुआ हूँ. I'm that rarest to rarest guy who has done performance at Paytm Insider, Jupiter, Better Half. Also was heading content growth at Filter Copy, Dice Media, Gobble and all. तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स है जो बात कभी नहीं करते हैं ना एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम के डेटा साइंस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड कंटेंट एंड टू एंड. And specifically, my claim to fame is I was the first marketing growth guy at Filter Copy, the largest content business of India back in those days. But अभी तो बिक गया है सारेगामा को. That was my claim to fame. Plus, वहाँ से जो रिपल इफेक्ट हुआ है,
I was an advisor to Raj Shamani. फिर then I was helping Sharan during 1% Club and all. तो वो सारा ऐड होते होते मैं आज के डेट में थोड़ा बहुत रेलिवेंट हूँ इसमें. ये सारे ऐड ऑन हो जाते हैं. Now, how many people you can imagine in India who talks content या have it like कुछ भी content के बारे में बोलते हैं but from a rational POV of brand. There are enough people, very few, and even if there are people talking about it, they will talk about YouTube में growth कैसे लाना है. सही बात है. वो बहुत नीच चले जाते हैं. वो बहुत नीच चले जाते हैं. वो एक ओवरऑल लाइक माइंडसेट राइट POV से बात नहीं करते. करेक्ट. सो कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं YouTube में स्पेंड करूं तो कौन से ब्रांड के लिए सही है, उसको स्पेंड क्यों करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी पुट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हिंदुस्तान यूनिलीवर पता होगा, PNG पता होगा. शुड दे हैव अ YouTube चैनल? I don't think so because their distribution is extremely high. तो उनको ज़रूरत नहीं है. नहीं भी हो तो चलेगा, और वो अगर होगा भी तो मार्जिनली इम्प्रूव करेगा उनका सेल. तो Who can afford YouTube? Them for sure. Them for sure. But who needs a YouTube then? 0 to 1 वाले who can't afford. So how do you figure out this? It's a great question. It's a great dilemma. It's a big dilemma. It's a big dilemma. So what happens is market में इसलिए entry exit चलता है. सीरीज भी लिया, सीधा मार्केट में उतर के एजेंसी जाके सर यूट्यूब करनी चाहिए आपको, यूट्यूब करनी चाहिए, यूट्यूब करनी चाहिए. बेचने वाले को भी पता है कि वो एग्जिट मारेगा 6 महीने बाद, बिकॉज यार फाउंडर की फट जाती है. इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट डोपामाइन. व्हाट डू यू मीन एग्जिट मारेगा? मतलब 6 महीने के लिए काम करेगा, उसको पता है ग्रोथ आनी है नहीं, ग्रोथ आनी है नहीं, वो भाग जाएगा. उसका 6 महीने का पैसा उसका 6 महीने का पैसा बन गया. उसको ये पता है कि 6 महीने बाद ये आके बोलेगा भाई 20,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए, बस मैं क्या करूँ 20,000 सब्सक्राइबर्स का. इंस्टाग्राम पे किया होता 100 की हो जाते. इंस्टाग्राम तो डोपामाइन हिट है ना आज के डेट में. व्यूज तो मतलब रैंडमली आ जाते हैं. नाउ यार ये सब है ना, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ. एंड अगेन आई थिंक आई हैव दैट बैगेज ऑफ कि यार इंडस्ट्री में काम किया हुआ है. आई डोंट वांट बैड ब्लड. लोग सोचें कि साला ये हरामी है, बेच के चला गया एंड ऑल स्टफ. ऐसा बस बीच बीच में शॉर्ट टर्म मनी बनाने के लिए, बीच बीच में शॉर्ट टर्म मनी बनाने के लिए. सो आई एम लाइक आई विल डू राइटफुल व्हाट इज नीडेड. बट हाउ डू यू जस्टिफाई दैट डिलेमा? हाउ डू यू लाइक आई एम श्योर ये डिलेमा आपके सामने भी आता होगा. हाँ ट्रू, एब्सोल्युटली. तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? कुछ नहीं. आई थिंक अगर मैं उधर का CMO होता तो मैं क्या करता. एवरी टाइम आई एम सेलिंग समथिंग, मैं उधर का साइड का CMO होता तो मैं क्या करता. एंड जेन्युइनली आई हैव एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कि सर आपके ऊपर क्या टारगेट है ना. मेरा फाउंडर ही है. आपका फाउंडर कैसा है बताना. ही अंडरस्टैंड्स मार्केटिंग ना, नहीं समझता है. कितना लास्ट राउंड फंड रेस किया था, सेकेंड राउंड कब है. तो बहुत सारा मैटर करता है इन सब में. ये सवाल कोई नहीं पूछता. पहला आप सवाल पूछ भी नहीं सकते ये, बिकॉज आपको वो सवाल पूछने के लिए यू नीड टू हैव दैट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के सामने वाला भी कोई देगा. लेट्स से यू हैव अ फाउंडर और एनीवन इन द टीम जिसको आप भेज सकते हो. उसको अगर आप ये SOP बनाओगे तो नहीं होगा. किसी का दिमाग भी उतना चलना चाहिए कि कैसे निकालोगे. आपका लास्ट राउंड का VC कौन है, नेक्स्ट राउंड का VC कौन है. बिकॉज इफ़ यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप्स, आपका VC कौन है ऑल्सो विल डिपेंड कि वो उस टेरिटरी को हाँ भी करेगा नहीं करेगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग स्पेंड्स इन इंडिया, स्पेशली इफ यूर इन अ स्टार्टअप, इफ द स्पेंड इज वेरी वेरी हाई, दे हैव टू सेंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड मंथली रिपोर्ट्स टू VCs. ये लोग पूछेंगे ये भाई ये क्या चल रहा है, यूट्यूब पे डाल दिया, मुँह फाड़ के मांगते हैं ना कंपनीज, 20-20 लाख डाल दिया, क्या करोगे. 20 लाख तो पर्फ पे डाल देते, परफॉर्मेंस पे डाल देते, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू जस्टिफाई. सो आई स्टे अवे फ्रॉम दोज. मुझे दिखा है VC राउंड छोटा राउंड हुआ है, परफॉर्मेंस चाहिए, इन्फ्लुएंसर सही होगा, आई विल गो एंड ओनली सेल दैट. व्हेन यू अप्रोच, लाइक व्हाट्स योर अप्रोच स्ट्रेटजी? लेट्स टॉक अबाउट यू रीचिंग आउट टू देम और दे रीच आउट टू यू. मैं शुरुआत से करता हूँ. इट्स बीन 1 year. अच्छा, 1 साल हुआ है. 1 साल हुआ है इन दिस. एंड यू राइट नाउ हैव दीज कंपनीज लाइक Echo. यस, सो Echo शुरुआत से है. Wakefit 8 महीना. Wakefit is not there with us right now. Farmeasy we worked for 3 to 4 months. Razorpay 1 month. There's a company called Fires. We are working. Echo Drive is something which is another company under Echo. We are working. सारे मोस्टली लॉन्ग टर्म रिटेनर्स हैं. एंड जितने भी 0 to 1 वाले हैं ना, सब 1-1 महीने में निकले हैं. सारे के सारे 1-1 महीने में निकले हैं वो. और वो ब्रीड को साथ में झेलना भी नहीं चाहता एनी मोर. Before this, I was doing fractional CMO-ship, independent consulting for last 3 years. Last मेरा full time job था Jupiter में. Fractional CMO वाला भी करा है आपने? हाँ. So last job was मेरा Jupiter में in 2022, if I'm not wrong. उसके बाद से 3-4 साल मैंने सोलो किया. I had a team of 4 people, exactly what you are doing, full remote किया, पूरा प्यार से किया. I understood उसमें क्या है, क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, all stuff. ये चुल के मारे कर रहा हूँ और कुछ नहीं. आई हैव नथिंग टू लूज एनी मोर. आई फील स्किल उतना है कि कुछ भी डूब भी गया तो फिर से कर लेंगे, कुछ नहीं. उसके पहले एनफ
company building, dealing with VCs, leading teams, building from scratch stuff, and also advising and all. वो सब किया हुआ है. Now, since I know how a VC thinks, I know how a CMO thinks, I know how a founder thinks, I have honestly, full admission, no idea how a Reliance thinks. I have no idea. And that's where my co-founder helps. So when I started this company, I'm a second-time founder. I was building a social networking company in 2016 that did not work out. We founders fought with each other. That did not work out at all. So this time I was like, I need a co-founder who is much senior than me, who should come from an area where he handles legacy, I handle the startup. Complementary चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए सेम पे जाके फसड़ मचा रहे हैं. So we started this. पहला क्लाइंट कौन सा था? पहला क्लाइंट was Acko. कैसे आया? Inbound. What do you mean inbound? Inbound means Acko. वो मैं समझ गया, मतलब पता है मेरे को. So आया कैसे? Acko reached out to my co-founder Sushant saying सिंधु के साथ एक कॉल करनी है. डायरेक्ट ऐसे? हाँ, सिंधु के साथ एक कॉल करनी है. I have heard he is an ex-Raj Shamani, ex-Filter Copy this. We have taken R. Madhavan as a brand ambassador. We have launched a YouTube channel. Numbers नहीं आ रहे. 2K आ रहा है. So having R. Madhavan and still having 2K. Yeah. Okay. So if you guys can help us figure out, so we will figure out something. So yeah, that was it. Same thing was with Wakefit as well. Wakefit भी सामने से आया. Sushant को reach out किया. And so Wakefit initially wanted Sushant as an independent consultant. सुशांत ने बोला मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं सिंधु के साथ आऊँगा. सो दे वर लाइक सिंधु के साथ कॉल फिक्स करो 1 घंटा. अगर सिंधु जो भी हमें बोलता है अगर पसंद अगर आया तो मैं सिंधु को उसका पैसा दूंगा प्लस मैं रिटेनर भी दूंगा. सो दिया 1 घंटे का ज्ञान. सो दे वर वेरी हैप्पी. दे वर लाइक ऑफिस आ जाओ. सो ऑफिस में पूरी 20 मेंबर की मार्केटिंग टीम बैठी हुई है. फिर बात हुई. फिर फिर दैट्स व्हाउ वी स्टार्टेड. सो इनिशियली इट वाज इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग, देन कन्वर्टेड इनटू अ टीम. We used to work out of Wakefit's office initially. Then everything has been inbound. There is no outbound where I have reached out to someone cold or anything until now. I think I might, but for overseas, not for India. Because so my channel is this. LinkedIn पे लिखता हूँ मैं. LinkedIn पे शुरुआत से लिख रहा हूँ. सामने से LinkedIn से आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है. And there are training sessions. So I teach at Masters Union. I was teaching at Growth School. तो कहीं ना कहीं पे पढ़ा रहा होता हूँ, वहाँ से कुछ funnel आ जाता है. So when I say inbound ना, in my understanding it is a thought through मार्केट में छोड़े हुए बंदे हैं और कुछ नहीं. एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट मार्केटिंग स्कूल. सो आई नो कि फॉर इमेजिन दिस ना दैट इफ आई ट्रेन ऑल द ब्रांड मैनेजर्स ऑफ इंडिया, थोड़ा वाइल्ड ले लेता हूँ, इंडिया के 300 ब्रांड मैनेजर्स को सिंधु ने पढ़ाया है और मैंने एक प्लेबुक बेचा है कि यही प्लेबुक से ऑपरेट करना चाहिए. फिर आउटबाउंड तो क्यों करना है आउटबाउंड? एग्जैक्टली. एंड देन आई हैव मोर अथॉरिटी बिकॉज आई समवन टोल्ड मी द मैकेंजी वे. सो मैं बहुत श्योर हूँ, मैं शबांग नहीं बना रहा, मैं ऑगलवी नहीं बना रहा, मैं मैकेंजी बना रहा हूँ. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट बिकॉज आई रियलाइज्ड, आई थिंक दैट इज द टेरिटरी वेयर प्रीमियम लाइज एज अ बिजनेस. दैट इज द टेरिटरी. एंड ज्ञानबाजी वाला मैकेंजी नहीं, मैकेंजी एग्जीक्यूशन भी करता है, बट दैट इज द टेरिटरी वेयर अथॉरिटी लाइज. When a BCG sells BCG metrics that is taught in MBA colleges, you are like, fuck, there is an agency जिसने BCG metrics MBA college के book के अंदर घुसा के रखा है कि a person who right out of college passes out and like कि okay उसने agency का एक playbook पढ़ा है. No one has thought of advertising को वैसे इसमें डालने का. So I'm just trying to attempt कि देखते हैं क्या हो सकता है, because जो edtech बना रहा है वो अलग दिशा में चल रहा है, वो वेंडरशिप. जो एजेंसी बना रहा है वो वेंडरशिप पे चल रहा है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. बट एज अ पर्सनैलिटी आई एम ऑन बोर्ड ऑफ एन AI कंसल्टिंग कंपनी एज वेल, अ जेन AI कंसल्टिंग कंपनी. सो जब हेल्प की बात कर रहे थे, सो आई एम लाइक, आई नो कि लाइफ इज शॉर्ट फॉर मी टू जस्ट डू वन थिंग एंड नॉट हैव फन. सो आई एम लाइक, कोई भी कुछ अगर इंटरेस्टिंग बना रहा होता है, सो आई जनरली फिगर आउट अ वे कि ओके एडवाइज़र इक्विटी या कुछ बन सकता है जहाँ पे मैं जितना भी मुझे पता है, जितना भी मेरा पावर है, मैं उस टेरिटरी में बिना कम्पीट किए, बिकॉज मुझे पता है मैं सारा होल्ड करके नहीं रखना चाहता और मैं नहीं कर सकता, चांस ही नहीं है. अगर कर सकूँ, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल समवन बिल्डिंग अ लिंक्डइन कंटेंट ब्रांडिंग, ये
आई नो फुल पोटेंशियल है, एंड आई नो तुम लोग कहाँ पे फंसोगे जाके. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, टीम स्ट्रक्चर्स, SOPs, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर इट इज. इनफैक्ट लिंक्डइन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मार्केट में? आई एम सो बुलिश, आई एग्जैक्टली नो मार्केट में गैप कहाँ है कि मुझे सिर्फ एक दिन बहुत इरिटेट होना है और 5 लोग हायर करने हैं टू किल द मार्केट. आई टेल यू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एंड यू माइट हैव रियलाइज्ड, यू हैव मेट एनफ लिंक्डइन के पीपल हु आर डूइंग इट. दे प्रैक्टिकली सेल टेक्स्ट एज अ सर्विस. इफ आई स्पेसिफाई, मार्केट में इशू क्या है? 15 टेक्स्ट पोस्ट देंगे और इतना चार्ज करेंगे. करेक्ट. अ फाउंडर, एक वर्ड है ब्रांड पोजिशनिंग, पता होगा. करेक्ट. जब एक ब्रांड का ब्रांड बुक लिखा आता है, व्हाई द हेल नो लिंक्डइन पर्सन इज सेलिंग अ पर्सनल ब्रांड बुक? ब्रांड का टोन ऑफ वॉइस क्यों नहीं है? वो पर्सन का टोन ऑफ वॉइस का ब्रांड बुक कैसे नहीं है? अगर आपको ब्रांडिंग पता है, हमेशा हर वक्त बनता है एक ब्रांड का, उस पे उसका पर्सनल ब्रांड का पर्सनल ब्रांड मैनुअल क्यों नहीं है? ब्रांड मैनुअल क्यों नहीं है? उस ब्रांड मैनुअल को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? उस पे सिंपल है. चलाने तुम वाला, अगर क्लाइंट को साइन कर रहे हो और उनसे जब तुम ब्रांड से मांगते हो ब्रांड मैनुअल, तो पर्सनल ब्रांड से क्यों नहीं मांगते? एग्जैक्टली. और तुम्हें बनाना पड़ेगा बिकॉज उसके पास भी नहीं होगा. और उसका रीजन बहुत क्लियर है, बिकॉज ऑल द ओनर्स ऑफ दिस आर नॉट ब्रांड फोक्स. आप चिल्ला लो ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो, बट आपने किया नहीं है ना काम. इमेजिन इफ अ कोका कोला हेड ऑफ ब्रांड टुमारो जस्ट डिसाइड्स और थोड़ा मूड में आ गया कि यार ये बच्चे लोग ये कर रहे हैं, मैं कल चालू करता हूँ, वो मार्केट खत्म कर देगा. तो व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि मैं 5 लोगों को ले आऊं और मार्केट किल कर दूं? वो क्या करोगे आप डिफरेंट? सो बहुत सिंपल है. आई थिंक the specific market is this, and again the reliance or the allegiance came from 5 founders in the last 6 months reaching out to me and saying, Sindhu, I'm going IPO. मुझे पर्सनल ब्रांड एंटायर चाहिए, लिंक्डइन नहीं. पर्सनल ब्रांड टोटालिटी में होता है. ट्विटर पे क्या करूं, रेडिट पे कुछ करूं क्या? लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड कुछ नहीं होता है. लिंक्डइन पे क्या करूं, शुड आई डू पॉडकास्ट, डिजिटल PR में क्या करूं, क्या मेरा न्यूज़पेपर में कुछ होना चाहिए? इट इज प्रॉपर PR. वहां पे मोट है और वहीं पे है, और वहीं पे पैसा भी है, और वहीं पे पैसा भी है, और वहां पे लेजिट नीड है. लाइक यू नो दैट बोट जब जाएगा, लेट्स से इसमें तुम्हारा IPO में, यार लगेगा वहाँ पे सारे प्रमोटर्स का लगेगा, सिर्फ अमन गुप्ता का नहीं. बट क्या होता है, सेल्स डील फनल कैसे होता है? आपको अमन दिखता है तो आप अमन के पीछे जाते हो. आप इतना दिमाग नहीं लगाते हो कि जब एक कंपनी IPO जाती है, सारे प्रमोटर्स का लोग जाके चिट्ठा ढूंढते हैं, सिर्फ अमन का नहीं, जितने भी प्रमोटर्स हैं. सो मेरे लिए तो वो खाली स्पेस है ना कि अमन अगर सामने विजिबल है, उसके पीछे जो लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रमोटर बैठे हैं, उनके पास जाओ इन दैट केस. और ऐसे 1000 लोग हैं, ऐसे 1000 लोग हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं है. स्पेस बहुत बड़ा है. स्पेस बहुत बड़ा है. बट आई रियली सी दिस प्रॉब्लम इन एजेंसीज इज कि दुनिया में कंपटीशन बहुत एजेंसीज में, लेकिन नहीं भी है. करेक्ट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? एब्सोल्युटली. कि भरे हुए हैं, हर तीसरा बंदा एजेंसी ओनर, हर तीसरा बंदा फ्रीलांसर है, हर तीसरा बंदा सर्विसेज बेच रहा है, लेकिन कोई नहीं बेच रहा है. ठीक है. What do you really think about what's wrong in the agency world right now? I'll tell you what is a good thing and what is a wrong thing. Good thing is micro markets build हो गए हैं. पहले micro markets exist नहीं करते थे. Like for an example, an Ogilvy in their whole life कभी सोचे नहीं होंगे LinkedIn पे नजर करनी है. मतलब वैसा तो अलग बात है कि उन्होंने कभी डिजिटल पे भी नजर नहीं की थी, बट LinkedIn इतना बड़ा हो सकता है. लाइक वेदिका हैज बिल्ड अ फेनोमेनल बिजनेस आउट ऑफ इट. वो जो नंबर्स बोलती है ना, वहीं पे गड़बड़ भी है. अब गड़बड़ क्या है कि आप अपने पॉकेट में पैसे डालने के लिए अगर बना रहे हो, आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ठीक है, बट यार मे बी मैं थोड़ा एथिक्स वाला मानना हूँ. मुझे लगता है कि लाइफ इज़ टू लॉन्ग. आप यहीं पे रहोगे, लोग याद रखेंगे, और मार्केट मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी है. मार्केट जल्दी खत्म हो, बहुत छोटी है मार्केट, बहुत छोटी है, फटाफट खत्म हो जाएगी. ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब अनगिनत मार्केट है, चला जा रहा है. मैं खाली इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स को भी अगर करूँ, हार्डली गिन चुन के 100 स्टार्टअप्स होंगे जो करेंगे. अगर इमेजिन करो मैंने 100 लोगों को इंस्टाग्राम खाली बेच दिया, मैं नेक्स्ट साल क्या करूँगा? मुझे मार्केट बदलना पड़ेगा, इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, कोई नया सर्विस लाना पड़ेगा. अगर मैं 1 साल सिर्फ इंस्टाग्राम बेचा और एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी पे 3 महीना बेचो, एग्जिट करो, फालतू में गया, वो सर्विसिंग को भाड़ में जाने दो, इनकम को भाड़ में जाने दो, 1 साल में खत्म हो गया. उसके बाद आ जाएगा इसमें. इसी में पूरा का पूरा मार्केट का प्रॉब्लम छुपा हुआ है. ना मैं प्रॉब्लम बोलता हूँ. मार्केट फोकसेस, एंड मार्केट्स को मैं 3 टाइप्स में तोड़ देता हूँ. वन इज द लेगेसी मार्केट. लेगेसी मार्केट is basically your Ogilvy's of the world, GroupMs of the world, Razorpay of the world, Razorfish of the world and all. इन लोगों का डिलीवरी सिस्टम जो है ना बहुत सॉलिड है. you have a chat with their account managers, you have a chat with the client servicing folks, and you check their client servicing to operations people ratio.
एंड वो क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन का एज क्या है और वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, आपको एक मॉडल मिल जाएगा, वो मॉडल को एक पेपर में रखो एंड देन यू लुक एट द न्यू जनरेशन, द एंट्रेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो बहुत बढ़िया पैसा छाप रहे हैं एंड ग्रेट पैट अंटिल नाउ, उनका मॉडल देखो, आपको गैप दिखेगा. देयर इज़ नो फोकस ऑन डिलीवरी, देयर इज़ नो फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग, क्लाइंट सर्विसिंग, अकाउंट मैनेजमेंट. देयर इज़ ग्रेट फोकस ऑन ऑपरेशंस. आई विल अग्री, नो डाउट अबाउट इट. इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लंबा रिटेनर खींचते नहीं हो. आप जब लंबा रिटेनर खींचते नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो, आप क्विक मनी फास्ट स्कीम पे उतर रहे हो. 2 साल खेलोगे, 3 साल खेलोगे, 4 साल खेलोगे, अगेन नथिंग बैड. बट आई एम लाइक, इफ यू आर इन योर अर्ली 20s, 30 में क्या करोगे? ऑड है ना. लाइक मैं अभी 30s में हूँ एंड आई हैव डन माई सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले जॉब एनफ कि ये काम नहीं किया तो जॉब कर लेंगे, बट तुम्हारे पास और कुछ चारा नहीं है. सो आई एम लाइक, थोड़ा वो एक सर्कल थोड़ा ऑड है. इनफैक्ट I feel all the early 20s should be playing the game in the right way, not just quick. What do you mean right way? Right way is basically if you just focus step by step. Only one North Star metric. Focus on longer retainers. Only one North Star metric, not even PAT, honestly speaking. What do you mean? Like how can people focus on long-term retainers? Good question. So उसको break down करते हैं. पहले आपको जानना पड़ेगा long term retainer मिलता कैसा है. I have realized the hard way in India, retainers are not a function of work. It's a funny thing, but that's what the reality is. आप बेस्ट काम कर रहे होगे, आपके हाथ से चला जाएगा. क्यों? ब्रांड मैनेजर निकल गया, एक नया ब्रांड मैनेजर आ गया, उसको आपका शक्ल पसंद नहीं है. Absolutely, yeah. उसको आपका बात करने का तरीका पसंद नहीं है. आप ब्रो बोलते हो, उसको अफेक्ट होता है. आप मैन बोलते हो, उसके ईगो पे लगता है. ये रियलिटी है. क्योंकि हो सकता है वो 40 साल का हो सकता है वो 40 साल का हो, यू नेवर नो. एंड आप ज़बरदस्ती के बछड़ जाके मचाते हो जहाँ पे नहीं मचानी है. इनको पता नहीं है यार, इनको नहीं पता है. एंड आपको लगता है बॉडी लैंग्वेज में दिखता नहीं है. सारा बॉडी लैंग्वेज दिखता है अनलेस एंड अनटिल मतलब यू आर द मास्टर ऑफ सेलिंग और यू आर अ मजिशियन और व्हाटएवर. सो पहला ये जो छोटे छोटे नेटिग्रिटीज़ है ना, सामने वाला कौन है, पावर किसके हाथ में है, CMO के साथ मुझे बात करनी चाहिए क्या, कैसे बात करनी चाहिए, मुझे बाहर निकलनी चाहिए क्या, उसको बाहर कितनी बार मिलना चाहिए, मुझे अप्रूवल विंडो कैसे जानना है, अप्रूवर कौन है, फाउंडर अप्रूवर है क्या. ये जो गेम्स हैं, पहले ये गेम समझना पड़ेगा फॉर यू टू इंक्रीज अ रिटेनर. दैट इज पार्ट 1. गेम समझने के लिए देयर आर ओनली 2 ways. बिल्ड एनफ रिलेशंस विद पीपल हु आर सीनियर. दैट इज द ओनली वे. क्यों? ऐसा तो नहीं है कि तुम एक बड़े एजेंसी के पास चले जाओगे, उसको पूछोगे कैसे काम करते हो, वो तुम्हें बताएगा ले भाई मेरा जान ले. बिल्कुल नहीं बोलेगा. और ऐसा भी नहीं है कि तुम जाके सीनियर लोगों को दारू पिलाओगे तो वो उगल के बोल देंगे. नाउ इसका मतलब क्या है? इट्स अ सॉफ्ट स्किल ऑफ हाउ यू बिल्ड अ रिलेशन विद अ सीनियर. एंड सीनियर इन टर्म्स ऑफ ब्रांड में सीनियर, एजेंसी में सीनियर, लेगेसी एजेंसी में सीनियर, लेगेसी ब्रांड्स में सीनियर. एंड इट इज़ योर वे. सो कुछ लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत बढ़िया जरिया बन जाता है. बहुत लोगों से मैंने सुना है दे यूज़ पॉडकास्ट एंड दे आर वेरी वेरी शेमलेस बाय एडमिटिंग यार मैं तो सिर्फ पॉडकास्ट करता हूँ क्योंकि ये एक जरिया बन जाता है, सामने वाला उगलेगा नहीं जाके दारू पी के, ये इसमें उगल देगा. लाइक जितना मैंने अभी बोला फॉर एन एग्जाम्पल, उतना तुम्हें उगलवाने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल विद समवन एल्स माइट बी यू विल नीड 2 meetups और मे बी यू और मे बी यू फॉर दैट मैटर. और या तो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल फ्रेमिंग अलग होगी फ्रेमिंग पॉडकास्ट में, क्योंकि अगले को पता है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने ही बैठा हूँ. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो इट बिकम्स एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन. इमेजिन इफ आई डोंट आंसर, देन मेरे दिमाग में चल रहा है फक ये कैमरा पे नहीं आएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा. पॉडकास्ट में ये एक अच्छी और बुरी बात ये भी है ना. तो दैट इज द फर्स्ट एरिया. द सेकेंड एरिया विच आई फील इज वेरी अंडररेटेड इज बिल्डिंग अ साउंडिंग बोर्ड. इसका मैं डेफिनेशन बना देता हूँ. I fortunately have a very strong sounding board of ex-head of Adidas, Coca-Cola. And ये sounding board का मतलब क्या है? मैं इनके साथ रेगुलरली डिस्कशंस करता हूँ, फीडबैक मांगता हूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ, क्या बनाना चाहिए. आई ट्राई टू मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप. उनके घर में जाता हूँ, बर्थडे है किसी का एनिवर्सरी है, गिफ्ट्स देना, ये करना. एंड मतलब जेन्युइनली आउट ऑफ रियल हार्ट एंड इमोशंस उनको हेल्प करना. आपके ऑफिस में कुछ दिक्कत है, मैं फ्री में हेल्प करूँगा, कोई नहीं आप बताओ क्या है, क्या इशू है. लोग कॉल करते हैं, यहाँ पे ये फंसा है, मेटा का अकाउंट बंद हो गया है, क्या करूँ. इन सब में बिल्कुल पैसा नहीं घुसाता हूँ इन सब में. प्लस फ्री फंड का बांटता फिरा हुआ हूँ कि
एडवाइजरी इक्विटी ले लो, मैं आपको साल का प्रॉफिट्स का इतना परसेंटेज दे दूंगा, ले लो ले लो ले लो। मेरा सिर्फ एक ही आस्क है, आपके पियर्स में आप मुझे पुश करोगे और मैं जब बोलूँगा आप बस मुझे बचाने आना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ये सारे धीरे 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 बनते हैं और ये कंपाउंड होता है। और ये कंपाउंड होता है। नाउ आई हैव रियलाइज इन द लास्ट 1 year ये कंपाउंड बहुत फास्ट होता है। आई यूज्ड टू थिंक कि कंपाउंड स्लो होता है, ये कंपाउंड बहुत फास्ट क्योंकि मार्केट छोटी है अगेन। क्योंकि मार्केट छोटी है अगेन। क्योंकि क्या होता है, आप जाओगे, लेट्स से रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, मीशो के पास। मीशो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा होता। मीशो पहला चीज़ क्या करेगा, वो जाके 5 लोगों को पूछेगा ये एजेंसी कैसी है। नाउ मैं सिर्फ ये, मेरा सिर्फ स्ट्रैटेजी है, वो 5 लोगों में से मेरा बंदा होना चाहिए हर जगह, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। एंड you will have to ask yourself by sitting in one room and just asking yourself कि इंसान मेरा नाम क्यों लेगा, मैं तो उसका भतीजा तो नहीं हूँ, या तो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और आज के रेट में तुम दे नहीं पाओगे जितना वो पैसा उनका सैलरी है, तुम दे नहीं पाओगे। लेट्स से अगर आपके दिमाग में ना, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि चलो अंडर द टेबल कुछ करते हैं, कर नहीं पाओगे, नहीं करते, कमीशन बेस नहीं चल पाता है। चलता है, आई विल नॉट से कि नहीं चलता पार्ट ऑफ इट इज दैट, या बट तुम कर नहीं पाओगे उतना, वो जितना कमीशन देना पड़ेगा। एंड सिर्फ पैसे से बात भी नहीं होती है। लाइक लोग बहुत इंडस्ट्री में व्हेन स्पेशली विद सीनियर्स दे टेक रेस्पेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, द वे यू ट्रीट, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ वेरी वेरी सीरियसली, मोर देन मनी ऑल्सो इन फैक्ट। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स मैटर। देन द थर्ड पॉइंट कम्स इज आपका जो, so there is something जो मैंने recently सीखा हुआ था, it's been 4-5 months in from the legacies, there is something called time cost model. Time cost model कुछ नहीं है, in very simple terms is आपको आपके हर बंदे का दिन का कितना घंटे का इनपुट है और उसका कॉस्ट कितना है और उसका रेवेन्यू मल्टीप्लायर कितना है पता होना चाहिए। उसमें होगा क्या, आपको पता है किस बंदे को कौन से वाले डिपार्टमेंट के कौन से काम में लगाना है। पहला, what do you mean एक बार इसको if you can so मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स से योर पर आवर रेट इज 2000 and you are working with a client जिसका monthly revenue is 1 lakh and you are giving 20 hours to it, divide करो, आउटपुट मिलेगा। so then you know कि your per hour का multiplier on revenue is making loss, so you need to make sure at least 2x 3x 5x 6x हो। the moment you start doing that you will then identify, अच्छा मेरा सीनियर एडिटर को इसके ऊपर लगाना चाहिए। इट्स द सिंपलेस्ट बेसिक एग्जाम्पल इज, जब जाते हो ना यहाँ पे क्या वो सलोन है टोनी एंड गाय, 5 रेट कार्ड निकालता है ना, जूनियर बंदे से चाहिए तो लो 1000 रुपये में, मेरा टोनी आएगा तो 1 लाख रुपये चार्ज करूँगा। दैट इज़ द बेसिक्स, दैट इज़ फर्स्ट। नाउ जब ये लगाते हो, इसमें आपको लग रहा होगा कि लेट्स से ये बहुत इकोनॉमिकल है या बहुत प्राइस सेंसिटिव है, नहीं। जब ये लगाते हो ना, क्या होता है, प्लस आपके पास अगर एक अच्छा क्लाइंट सर्विसिंग या अकाउंट मैनेजमेंट पर्सन है, वो उसको पता है ओके ये बहुत सेंसिटिव क्लाइंट है, ये बहुत क्रूशियल क्लाइंट है और इसके पीछे जो टीम लगी हुई है इनका कॉस्ट कम है, और वो क्या करेगा, वो दूसरा शीट बनाएगा जिसमें वो मैप करेगा ये सेंसिटिव क्लाइंट कितना, हाउ डू आई से, कितना चिड़चिड़ा है आज के रेट में, उसको पसंद नहीं आ रहा है क्या। जब उसको पसंद नहीं आएगा, वो फिर मैप करेगा कितना डेफिसिट, कितना मेरा गैप है कि मैं और लोग भी लगा दूं, मेरा प्रॉफिट है, तब वो और लोग लगा देगा। तो वो क्लाइंट को एक डिलाइट फील करवाएगा कि एक एडिटर काम कर रहा था, ये लो और दो, हम आपको 5 एक्स्ट्रा फ्री में बोनस दे रहे हैं। वो रैंडमली नहीं होता है कि अच्छा क्लाइंट बुरा मान गया तो और दो, ये लो 5 लिंक्डइन पोस्ट एक्स्ट्रा ले लो। वो डेफिसिट के हिसाब से फिर कैलकुलेट करके होता है। ये जो मैथमेटिकल वे ऑफ बिल्डिंग बिजनेस है ना, मैं इसी की बात कर रहा था। इसमें आपका पैड ज़रूर गिरेगा, बट इसमें आप एक मंथली एक्सरसाइज कर रहे हो टू अंडरस्टैंड दैट हे दिस क्लाइंट विल गो अवे और नॉट। लेट मी टेल यू अ नाइस एग्जांपल। गूगल का जो अकाउंट मैनेजमेंट टीम है, इफ यू चेक गूगल का सेल्स प्रोटोकॉल कैसे होता है। नाउ गूगल हैज़ द डेटा दैट ओके इफ आई एम स्पेंडिंग गूगल एड्स में 2000 रुपये पर मंथ और नॉट, लेट्स से आई एम स्पेंडिंग 2000 रुपीज़। गूगल कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज अ डेल्टा ऑफ ग्रोथ। मैंने इस महीना 2000 स्पेंड किया, 4000, 8000, 10,000, ये जो डेल्टा है ना, वो डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। दे इंटरनली हैव अ ट्रिगर सिस्टम। जब ये डेल्टा बढ़ेगा ना, वो सीधा अलार्म जाएगा उनके सेल्स टीम के पास। सेल्स टीम में हायरार्की है, डिपेंडिंग ऑन द हायर डेल्टा सेल्स की सीनियरिटी भी डिफाइंड है। सो अगर एक क्लाइंट 200% जम मारा है,
सीधा लगाते हैं एक तगड़ा वाला सेल्स वाला बंदा भेजो. क्यों लगाते हैं? वो सेल्स बंदा जब कॉल पे आता है वो क्या बोलता है? हाय माय नेम इज सिंधु, आई एम एन एक्स दिस जस्ट टू शो सीनियरिटी एंड जस्ट टू मेक यू फील ओ ये मेरे ऊपर ये लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, बड़ा वाला बंदा भेजा है. दैट्स इट. सो जो बड़ा वाला बंदे का जो कॉन्सेप्ट है ना कि लेट्स से आपका क्लाइंट ट्रिकी था और आपने लेट्स से 2 लोग लगाए थे एंड सडनली आपने एक सीनियर बंदा भेज दिया हु इज़ लाइक हाई आई हैव जस्ट जॉइन यू टू हैंडल योर अकाउंट, आई नो दैट सम फकअप्स हैव हैपन एंड ऑल, आई एम एन एक्स हॉटस्टार. गिव्स द सिग्नल दैट हे ये लोग मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किए, मेरे लिए डिलाइट किए. डिलाइट ये होता है. डिलाइट ये नहीं होता है कि आपने फेरो रोशर उसके घर में भेजा, कुछ नहीं होता उसका मीनिंग, कुछ नहीं होता. डिलाइट ये नहीं होता है कि आपने उसके घर में जाके एक पिक्चर ले लिया या उसका एक मस्त सा वीडियो बना के डाल दिया. लोग भूल जाते हैं लिंक्डइन पे. बहुत लोगों को लगता है कि फेम देना फाउंडर को इज़ अ स्ट्रैटेजी. येस इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है. लोग भूल जाते हैं, पूरा भूल जाते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. ये छोटी चीज़ें आप दिमाग में क्यों नहीं लोगे? बिकॉज आपकी फट जाएगी, आपकी फटेगी. बिकॉज इवन लाइक फक मैं कैसे हायर करूँ. आपने जूनियर इसलिए भरे हैं ना क्योंकि नंबर 1 सीनियर आप ला नहीं सकते. क्यों नहीं ला सकते? दैट्स अ सेपरेट टॉपिक. बिकॉज आपने इनफ टाइम नहीं दिया है. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कि आप नहीं सीनियर ला सकते. आप ला सकते हो, ज़रूर ला सकते हो. आप अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहोगे कि ओके मेरी बात कौन क्यों सुनेगा, देन मैं आपको उल्टा चैलेंज करूंगा. आप भी तो यूएस में जाके बना रहे हो ना, लोग सुन रहे हैं ना. इट्स अ स्किल सेट और कुछ नहीं. डेफिनेटली ला सकते हो. इट्स जस्ट दैट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है. सबने ध्यान दिया है छोटे बॉटम फनल में भरो, मार्जिन तगड़ा कमाओ, एग्जिट मारो उस पर. दैट्स दीज आर बेसिक 3 पिलर्स. इसमें और भी बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. अपसेल कब मारना चाहिए, मंथली रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग, सब कुछ स्ट्रक्चर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हाउ द क्लाइंट इज बिहेविंग बैक. एब्सोल्युटली लाइक रिपोर्टिंग एज अ फॉर्मेट. परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आई लर्नड इट जब मैं ब्रांड साइड पे था. व्हेन आई वाज वर्किंग विथ मर्कल सोक्रातीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल, ये रोज का MIS मॉर्निंग का एक रात को एक ऑटोमेटेड भेजते थे. ठीक है, टीम को जाएगा, फाउंडर को अलग सा उसके व्हाट्सएप पे जाएगा. वीकली रिपोर्टिंग ऑटोमेटेड था, एक 30 पेजर डेक. मैं ना पढ़ूँ, वो भेजेंगे और वो भेजते रहेंगे. हर 4 महीने में ऑफिस में आके मिलना मैंडेटरी. एक बहुत अल्ट्रा सीनियर बंदा लेके आएंगे कि मतलब फील करवाने के लिए पावर कि भाई हमारी फट लगे. ओ फक, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट आया है मिलने के लिए उन सब में. नाउ आई रियलाइज ये सारे प्लान्ड हैं. बिकॉज नाउ व्हेन जब मैं करने लगा, सो आई एम वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड सुपर मनी, फ्लिपकार्ट की कंपनी है. ठीक है, सो मैंने कहा रोज रिपोर्ट जाएगा, रोज शाम को रिपोर्ट जाएगा, चाहे जितनी मौत आ जाए, मुश्किल हो. रोज रिपोर्ट भेजते हैं, वीकली रिपोर्ट भेजते हैं. वीकली रिपोर्ट में 30 पेजर का इनसाइट भेजते हैं. हम इनसाइट पे बहुत मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, टीम खर्चा कर रहा हूँ. इनसाइट का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस करती है, उसका रिपोर्टिंग कैसा होता है आपने देखा होगा शायद. ये 30 इन्फ्लुएंसर किए, ये 30 इन्फ्लुएंसर के नंबर्स ये हैं, व्यूज़ ये हैं, वो हैं. मुझे कभी कभी लगता है जब मैं ब्रांड साइड में होता हूँ, यार ये तो नंबर तो मुझे ही पता है, मेरा इंटर्न भी कर सकता है. मुझे नुआंस बता ना कि ये क्रिएटर काम करने का डेफिनेशन क्या है, किस टाइप का क्रिएटर काम किया, मैक्रो किया, माइक्रो किया, कौन सा जॉनरा काम किया. कुछ नहीं. उनसे मांग भी लो, उनकी मौत आ जाएगी. क्यों? दे डोंट हैव अ डेटा साइंस टीम, या दे डोंट हैव द ग्रोथ पीपल ऑल्सो जिसको समझ भी है कि उसको बाइफर्केशन कैसे करना है. मैंने क्या करना चालू किया, मैंने कहा मैं 2 ग्रोथ के लोग लगाता हूँ जो इन्फ्लुएंसर करेंगे. नाउ हाउ माई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, मैं निकालता हूँ डेटा कौन सा लैंग्वेज वाला इन्फ्लुएंसर काम किया, इन्फ्लुएंसर का इंडोर शूट काम किया या आउटडोर शूट काम किया, 2 पीपल इन अ फ्रेम काम किया या 1 पर्सन इन अ फ्रेम काम किया, लड़की किया या लड़का किया, कौन सा एज वाला काम किया. नाउ दिस इज अ मैसिव इंटेल फॉर मी एज वेल, बिकॉज नाउ आई नो मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है. सही बात है. नहीं तो मैं 30 का वो जो 30 इन्फ्लुएंसर ले लो जाके बेचूंगा. इसी में ही प्रीमियम है और इसी में ही पावर है और इसी में ही अपसेल है, इसी में ही रिटेनर है. जितना डेप्थ में घुसोगे. सो जो प्रीमियम वाला जो चीज़ है ना, आई इन प्रोडक्शन आई विल अग्री. प्रोडक्शन में क्वालिटी में प्रीमियम आएगा, आई विल फुल्ली अग्री. एक्सेप्ट एनीथिंग इन प्रोडक्शन, एवरीथिंग एल्स इज प्योर डेप्थ और कुछ नहीं है. Even the performance marketing side of it is extreme. Performance तो extreme level depth. Because when you're talking about long-term building and all that, and this suddenly popped up in my mind, like Saheli and recent controversy with Ishan, whatever that happened. Yeah. What's your take on that? Because long-term building, what they were doing or what he quoted, the guy, declutter and all,
they coded. It's extremely opposite of what they were doing. What do you think about this market of courses and teaching, even without not having that much experience? Like, what are your thoughts on that? What are your thoughts? I feel I kind of resonate with Declutter and what he was saying. क्योंकि That you should not. that you should sell courses, but you should back it up extremely well. ठीक है? उसका बहुत कुछ कहना सही था कि अगर तुम अगर जिस वो दिखा रहे हो, अपना PDF और डेक दिखा रहे हो, जो तुम डाउनलोडेबल डेक दिखा रहे हो कि मेरे क्लाइंट का है, और उसमें अगर इतनी सारी मिसहैप्स हैं, इतने सारे वॉइड्स हैं, तो फिर ये झूठ है. लाइक दिस इज लाई. आई कैन कम राइट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई कैन से कि वो झूठ है. Correct. कि दे आर नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईशान, आई एम टॉकिंग अबाउट सहेली, बिकॉज ईशान इज नॉट सेलिंग एनी कोर्सेज. ठीक है, अगर वो चूतिया बना भी रहा है तो वो यूट्यूब पे आके बना रहा है. Right. और ठीक है, कंटेंट क्रिएटर है वो. But what? दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि सहेली इज सेलिंग कोर्सेज, ईशान इज नॉट सेलिंग कोर्सेज. तो उसमें मोरालिटी का क्या डिफरेंस है? मोरालिटी का डिफरेंस, बस मोरालिटी का तो डिफरेंस सेम ही हो जाता है ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी इतनी एजेंसी है. अगर तुम बोल रहे हो कि 50K ARR, ठीक है, क्लाइंट वो, या फिर 2,500 का क्लाइंट है, तुम बोल रहे हो कि 30K ARR, तुमको पता वो 4 महीने ही टिकने वाला क्लाइंट है, लेकिन तुम जबरदस्ती 30K ARR बोल दे रहे हो. Right. तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट ही वाज वेयर रॉन्ग. कि या फिर ही सेड कि दिस इज माई 6 crore हाउस, बट दैट वाज ऑन रेंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मेंशन करना, वहाँ पे मोरालिटी का गेम था. विद सहेली इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट, बिकॉज व्हाट सहेली इज डूइंग इज शी इज सेलिंग कोर्सेज. ठीक है, और उसका ऑफिस का वो बोलना चाहिए कि एजुकेशन में वो सब नहीं करनी चाहिए. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर तुम पैसा चार्ज कर रहे हो, तुम जूतिया बनाओ. ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं कि ईशान अगर बना रहा है, क्योंकि फ्री की ऑडियंस आ रही है, देख रही है, जितना एटलीस्ट उसे 5% भी नॉलेज किसी का बढ़ रहा है तो फ्री है वो. ठीक है, आई डोंट माइंड दैट इन एक एक्सटेंट. एटलीस्ट पैसा लेके नहीं कर रहा है. पैसा लेके अगर तुम कर रही हो, उसके बाद देन यू आर एक्सट्रीमली लाइंग. क्योंकि लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एजेंसी सर्कल एंड आई नो कि कौन कितना कर रहा होता है, किस तरह. क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ सबसे कि इसका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और सब पूछते रहते हैं मेरे से गाइडेंस ले रही है, मतलब जो भी चीज़ है. तो आई फील कि फिर वहाँ पे मोरालिटी ज़्यादा हैम्पर होती है. इट्स नॉट अबाउट हु इज़ राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हु इज़ रॉन्ग एंड मोर रॉन्ग. बस वो वाला गेम है इसमें. नहीं, आई थिंक स्पेसिफिक्स पे नहीं आता हूँ कौन क्या कर रहा है. सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ें किए हुए हैं. बट world, again we were having this at na, world is so small that कभी ना कभी it will come and bite you at some point of time. but चलो it's ठीक है, जो कर रहा है वो अपने टाइम में अपने circumstances लेके कर रहे होंगे. whatever, किसी को पैसा कमाना होगा, किसी को व्यूज कमाने होंगे. थियोरिटिकली मेरा एक मानना है दैट लाइक मैं ये मेंटल फ्रेम को थोड़ा मैं स्पेसिफाई करता हूँ. एक है इनवर्ड्स और एक है आउटवर्ड्स, विच इज़ मैं अगर लेट्स से बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, मजबूरी में हूँ, मुझे उस टाइम पे लेट्स से पापा का लोन चुकाना है, शादी करनी है, वटेवर, मुझे उस टाइम फ्रेम के लिए जो भी सही लगेगा और मैंने अगर किया, और मुझे अगर अंदर से पता है मैंने सिर्फ इसलिए किया बिकॉज ये सॉल्व करना था, डू इट. देन बाद में जो होगा वो देख लेना, बट एटलीस्ट इन योर फुल कॉन्शियसनेस यू नो कि मैंने इसलिए किया. बट वो ख़त्म होगा. जब खत्म होगा देन व्हाट यू डू बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. उसके बाद भी अगर आपने कंटिन्यू किया उस पर, देन आई थिंक वहाँ पे मोरालिटी वाली बात आ जाती है, विच इज़ वियर्ड एंड ऑफ, एंड उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करके ख़त्म कर देना चाहिए. आई थिंक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो. प्रॉब्लम मेरा कुछ और है. प्रॉब्लम मेरा ये है, आप जब 18 to 22 वालों को मिसलीड करते हो. मेरा हमेशा प्रॉब्लम है जब इंडिया का मेरा ना लाइफ में एक सिंपल सा प्रिंसिपल रहा है. आप इंडिया में अपर मिडिल क्लास बच्चों का जिनका पॉकेट मनी 10,000 है, उनको जो करना है करो, चलेगा. इसमें मैं मोरालिटी को भी थोड़ा मिडिल ग्राउंड पे रखता हूँ. लेकिन वो जो भूखा मर रहा है, जिसके पापा लोन लेके पढ़ा रहे हैं, जब वो मिसलीड होता है, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है. एंड I will refuse to accept that if you are getting more than 50,000 views at least also, आप वो क्राउड लेके आ रहे हो. क्योंकि इतना तो इंडिया का जनता नहीं है, और इतना तो खाली फोकट बैठा नहीं है अपर मिडिल क्लास की. 50,000, 100K वाले, 200K वाले, 1 million वालों का ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है. वो थोड़ा ऑड है. अब वहाँ पे बाइफरकेट कर लो, इनको फ्री कर लो, चलेगा, इट्स फाइन. बट मेरे को ऐसा लगता है ना भाई कि 25-30 लोग छोड़ के इंडिया में एजेंसी स्पेस में सब चूतिया बना. हाँ, सारे सब चूतिया बना रहे. लाइक एजेंसी, लाइक
जो सिंस एजेंसी की बात हो रही है, लाइक आई ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम. हर्षिल बेच रहा है क्या कोई कोर्स की एजेंसी कैसे बनाते हैं? नहीं बेच रहा. उसको पॉडकास्ट में जाना हुआ, उसको लाइक आई फेल्ट सो ग्रेट ऑनेस्टली, बिकॉज अगेन एज आई एम ऑल्सो एन एजेंसी बिल्डर, मुझे भी नहीं पता कैसे बनानी है. मैं भी अलग अलग जगह पे सीख रहा हूँ. मेरा तो पूरा रीजन ही यही है भाई, टू डू दिस. द होल पर्पस इज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम दिस. क्योंकि और कोई इशारा नहीं है ना. वही हमने बात की कि ऐसा तो कोई बुक नहीं है जहाँ पे लिखा हुआ है ना. जब मैंने वो हर्षिल वाला एक पॉडकास्ट सुना जहाँ पे उसने बोला है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 300 करोड़ में 18% है, दैट इज अ ग्रेट इनसाइट फॉर मी. और मुझे पता है इस इनसाइट के लिए मुझे अगर पैसे देने हुए तो मैं दूंगा. हर्षिल इज बेसिकली शबैंग सोना. या एंड ये इनसाइट मुझे मतलब मे बी आई कुड बी मिसकोटिंग वो नंबर, बट उसी टाइप का कुछ नंबर था. एंड ये नंबर जानने के लिए सदियों लग जाएंगे निकालने के लिए. बट एटलीस्ट नाउ आई नो कि ओ अच्छा मैं फॉल्स ओपिनियन में नहीं रहूँगा कि वो 40% पे जाके ग्रो करेंगे उस पर, वो फालतू का. और मैं क्योंकि मैं भी बना रहा हूँ ना प्रोजेक्शंस एंड ऑल. ना वो तो कोर्स नहीं बेच रहा. कोर्स बेच रहे हैं 23 to 25 ईयर ओल्ड एजेंसी ओनर्स कि हाउ टू मेक एन एजेंसी. मुझे उसमें प्रॉब्लम है. उसमें भी मुझे चलेगा कि अगर आपने 1 साल बना लिया कंपनी, आपने लेट्स से हर्षिल और 5-6 ऐसे एजेंसी ओनर्स को लिया और एक कोर्स एक बनाया खुला, सब कुछ अपने नाम पे नहीं बेचना है. दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ग्रेट. खुद कैसे बेच सकते हो? और खुद जब बेच रहे हो, खुद आप बेचो जाके पीपल हु आर वर्किंग. बट वो 18 से 22 साल के लौंडे जो कॉलेज में है उनको झांसा दे रहे हो कि ओके ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी. कॉलेज से ही आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग चालू कर लो, घर में बैठ के ऐड बना लो. मुझे उससे प्रॉब्लम है. सो मे बी ईशान के वीडियोज़ आर नॉट डायरेक्ट कि आप घर में बैठ के बना सकते हो, बट पैकेजिंग वैसी है. नाउ आई विल स्लाइटली एम्पथाइज विद हिम कि उसको ये पता है कि वो नहीं करेगा तो व्यूज नहीं आएगा, तो वो भी अपना घर चला. बिकॉज वन ऑफ दिस आर्टिकल आई विल नेम one of the article flashed about Ayush Wadhwa that he just made 2 crores in revenue the first year. या फिर जो भी था, I don't remember the correct amount, but वो crores में ही था. Right. And this is just 1 or 2 years in the, but nobody understands that that's revenue. That's revenue. और sets और shoot पे बहुत खर्चा जाता है. Exactly. And larger the production, thinner your margins. Light dada, spot dada, depends on your market. इसका क्या है? Like because you अभी recently had you will hardly make. ओके, प्रोडक्शन का एक अच्छा चीज़ है, आपको 50% एडवांस मिलता है. ठीक है, तो तुम्हारा सेट का कॉस्ट निकल जाता है. तुम्हारा कॉस्ट निकल जाता है, तुम्हारे पैसे अटकने के चांस नहीं है. तो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, तुम वो 50% को रोटेट कर सकते हो एज अ कैश फ्लो, या तुम 50% अगर इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन यू कैन पुट इन अ म्यूचुअल फंड, ऑपरेट मार्जिन्स ऑन दैट पार्ट एज वेल इफ़ यू जस्ट अ सिंगल पर्सन एज वेल. अगर तुम और अल्ट्रा स्मार्ट हो, लोग मैं जानता हूँ ट्रेडिंग में डाल के उसको स्विंग करवा के फिर भी रोटेट करते हैं. वेरी वेरी स्मार्ट मूव्स इन दैट केस. बट एसेंशियली 40% इज द मैक्स जीपी. अगर आपने तगड़ा प्रोडक्शन निकाला है, जीपी ना, दैट इज जीपी. 18% और कटेगा, और फिर टैक्स भी कटेगा उसके बाद. सो योर मतलब यू माइट बी सिटिंग एट 2 crores 4 crores, डजंट मैटर. लाइक रियलिटी में आपके पॉकेट में उतने पैसे आए. ठीक है. नाउ हियर इज अ चैलेंज दैट नो वन टॉक्स अबाउट. जब नेक्स्ट प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन में यू ऑलवेज नीड लिक्विड कैश फ्लो टू रोटेट. You always will need. Specifically if you are doing production in Bombay, आपका लाइट साउंड बिना एडवांस के हिलेगा नहीं. अगर आपने मूवी शूट्स पकड़ लिया या आपने कोई सेलिब्रिटी पकड़ लिया, आपको देना पड़ेगा उनको भी एडवांस. अब आप बोलोगे लेट्स से, और ऐसा तो नहीं है कि ओके, मैं और थोड़े नुआंस बोलता हूँ. द लार्जर ब्रांड्स यू गो, दे हैव अ 60-day क्रेडिट साइकिल. ऑल लार्जर ब्रांड्स. और ये अपफ्रंट एक थोड़ा भी एडवांस नहीं. तो आपने भी क्यों बोला 50% एडवांस मिलता है? सो 50, ओके, मैं देन और थोड़ा नुआंस पे क्लैरिफाई कर लेता हूँ. इंडिया के अल्ट्रा लार्ज ब्रांड्स आपको 50% एडवांस जिस दिन शूट है उस दिन देयर इज अ वेरी हाई चांस नहीं मिलेगा. जितने नए स्टार्टअप्स हैं ना वो दे देंगे. ठीक है. सो जितने भी कंपनीज में फाइनेंस कंट्रोलर है, CFO है, अल्ट्रा लार्ज मतलब लेगेसी वाले जो लिस्टेड हैं, वेंडर ओपनिंग हो गई है. वेंडर ओपनिंग, आप वेंडर ऑनबोर्डिंग करके दिखा दो ऑन डे, मैं मान लूंगा उस पे. उसमें आपके फाइनेंस कंट्रोलर आएगा. फाइनेंस कंट्रोलर बोलेगा सारे लाइन आइटम मेरे को खोल के दिखा. वो सारे लाइन आइटम पे नेगोशिएट करेगा. रिलायंस के साथ काम करके देख लो एक बार, वो आपको देन समझ में आएगा इंडिया में फाइनेंसिंग कैसे होती है. आप ऐसे रैंडमली चूतिया नहीं बना सकते कि नहीं मेरे कैमरा 1 लाख की है, वो कैमरा का मॉडल मांगेगा, वो कैमरा का मॉडल जाके चेक करेगा, साला सेम कैमरा मॉडल मेरा यूज़ भी हो रहा है नहीं हो रहा है. बिकॉज कोई सोचता नहीं है. एक्चुअली ये सारे ब्रांड्स को करनी चाहिए. आपने जाके मुझे लेट्स से बोला कि मैं जी 6 कैमराज लेके आऊँगा, मेरा कॉस्ट इतना है. नाउ क्लाइंट फॉर ऑल अनफॉर्चुनेट रीजन इज नॉट लेट्स से अवेयर इनफ
कि उसको पता नहीं, उसको कैमरा जाके चेक करनी चाहिए वो कैमरा सही में दे रहा है क्या, क्योंकि कैमरा सस्ता भी लगा सकता है, चार्ज किया ज़्यादा से ज़्यादा, क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता है बिकॉज स्टार्टअप्स चलते हैं लीन मॉडल में ना, उसके सीएमओ को पता है कौन सा कैमरा चेक करना चाहिए। ये रोड का आपने लेट्स से ये श्योर का है ना, ये इसका है सैमसंग का है, सैमसंग का है, लेट्स से सैमसंग का लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 20 का है, आपने मेरे को 40 का कोड करके लगाया हुआ है, किसी को तो चेक करना पड़ेगा उसको श्योर का। हाँ, सो आपने श्योर का बोल दिया फॉर एन एग्जांपल, मान लो कोई जाके चेक नहीं कर रहा, ये लार्जेस्ट कंपनी एक एक लाइन एक एक मॉडल नंबर कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है सारा चेक करेंगे, हेंस डिले होता है। हेंस यू नो कि आपको तो जाना है शूट पे, आपके पास नहीं है, आपको वहाँ पे खड़ा करने के लिए बॉम्बे में शूट कर रहे हो, स्टूडियो बुकिंग मांग लेगा आपसे, एडवांस दो, वो पैसे कहाँ से आएंगे, कैश फ्लो चाहिए ना। इमेजिन कर लो 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपके पास नहीं है, या तो आप ना बोलो किंगफिशर, रिलायंस, कोई भी बड़ा कंपनी को, या तो आप पैसों की ये करो। सो ये जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो आपका पुराने से आता है, आपको पुराने में उतना कैश फ्लो रखना पड़ेगा कहीं पे, पॉकेट में कहाँ आया पैसा, नहीं आया ना। सो पहले 4 प्रोजेक्ट तो आपके कैश फ्लो बिल्डिंग में खाली गए, वो पॉकेट में ही आपने नहीं लिया। सो माई प्रॉब्लम इज ये बता देनी चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन ना बहुत ईजी लगता है चालू करना, प्रोडक्शन पॉडकास्ट का स्टिल थोड़ा कम वाला सेटअप है, आप बॉलीवुड में ना घुस नहीं सकते, आप कोई भी ब्रांड का टीवीसी एड टीवीसी, इनफैक्ट पॉडकास्ट में भी अगर आप बोलोगे कि आई विल गेट अ बिग स्टारकास्ट, यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द पॉडकास्ट दैट यू डिड विद, इट्स अ वेरी लार्ज वन, ऑन्ट्राज होता है, ऑन्ट्राज इज मैंडेटरी, सेटअप इज मैंडेटरी, उनके पूरे रिक्वायरमेंट्स होंगे। क्या कॉस्ट आती है जैसे द काइंड ऑफ पॉडकास्ट यू शॉट? एक बॉल पार्क दे देता हूँ, पूरा एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कर सकता। सो इट विल बी एन द प्रोडक्शन, इफ यू आर गेटिंग अ स्टारकास्ट देयर आर मैंडेट्स, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लोथिंग, कॉस्ट्यूम्स आएगा, देर विल बी, यू विल हैव टू पुट Zara के 5-6 कलेक्शन एंड वन विल बी चोजन इन दैट केस, यू विल हैव टू बुक अ वेरी फाइन प्रीमियम प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी क्लोजर टू दैट स्टारकास्ट का घर, मैंडेटरी। आप ये नहीं बोलोगे तू आ मेरे घर पे स्टूडियो है, नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूशन मोट बन जाता है। सो लेट्स से राज कैन डू दैट बिकॉज वो अभी इतना बड़ा हो गया है कि वो बोले तू आ, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। बट सारे पॉडकास्टर्स को कहानी पूछो, वो बोलेंगे बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है, कि तू आ बोलने के लिए कितना बीच में एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल, उसमें भी क्या चलती रहती है एंड ऑल स्टफ। देयर विल बी एन ऑन्ट्राज, आपका वैनिटी वैन मैंडेटरी है, आपका सर्टन काइंड ऑफ लाइट्स मैंडेटरी है, आप फ़ोन नहीं लगा सकते, यू कैन से कि यार मैं तो आईफोन में कर लूँगा, ना 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 ना, वो बड़ा कैमरा लगेगा मतलब लगेगा, आपका डायरेक्टर का बड़ा ये लगेगा मतलब लगेगा, एंड यू नीड एन एक्सपीरियंस डायरेक्टर, आप ऐसे नॉर्मल नहीं भेज सकते बिकॉज इट्स हार्ड टू हैंडल सेलिब्रिटीज, वेरी हार्ड टू हैंडल सेलिब्रिटीज, उनके अलग से। तो ये जो आपने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स, ओके, सो व्हाट वाज दैट लाइक, वहाँ पे क्या क्या था, ये सब ऑन्ट्राज में इसमें क्या क्या चीज़ें थी? वी वर शूटिंग इन आईटीसी का, वो क्या उसका नाम है वो, तो ये क्या होता है इसमें, लाइक बिकॉज यू होस्टेड, वी कैन डू, सो दे आर लिविंग देयर, वी हैव टू शूट देयर, देयर इज नो ऑप्शन, they are living there, we have to shoot there. क्यों? Safety guidelines. And what brand were you? Acco was a sponsor and hence we were shooting that. Now it's a complicated area, so Sushant takes care of production because he has been doing production for ages. As far as I don't understand, I'm not the best person to understand the nitty-gritties of the complications of that. I understand the complications of that as well. The complication in hosting a podcast is even higher because when you are doing celebrities in any form, sports and all, उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है पॉडकास्ट से, ठीक है, उनके दिन में 15 इंटरव्यूज होंगे, यू आर वन स्लॉट, वो एंट्री मारेंगे, आप बैठे होगे बोल के कि आधे घंटे का टाइम है, आपकी मूड खराब होगी वहीं पे, आपकी पूरी आपने प्लान किया होगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा फोड़ दूंगा ये कर दूंगा, आपकी मूड वहीं पे ऑफ होगी। 4 इंसान होंगे, 4 इंसान के अलग अलग आइडेंटिटीज, एंड मतलब अपनी वार्म अप जब तक होगा, एग्जैक्टली तब जब तक होगा तब तक टाइम खत्म उस पे। एंड बाय द वे ऐसा नहीं कि आधा घंटा इज नॉट इंक्लूडिंग वार्म अप, इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सो यू हैव टू कीप द वार्म अप शॉर्ट। फिर कोई उसमें किसी का मूड खराब हो गया, वहीं पे कोई बोर हो रहा है, आपको देन नेविगेट करना है। एंड आई थिंक one thing I realized is it's one-on-one podcasts are easy because then you don't have to cater to 5 people. Exactly, the 5 लोगों का कोई उसमें कैसे कर रहा है, उसको तुम देख कोई रहे हो, टाइम देख रहा है बैठ के वहाँ पे। It's tricky. Just before coming to Mumbai, कि मैं सोच रहा था कि shall I do everything? I was talking to Ansh Bhatnagar as well, प्रखर के प्रवचन का प्रोड्यूसर, कि मैं सब कर लूँ नहीं कर लूँ, लेकिन फिर then I realized यार I would rather have this as a lifestyle. Absolutely. Then
a race to being number one. क्योंकि फिर उसमें ना I really feel कि content as a whole should not be optimized for making money. True. Content should be optimized for distribution. True. ठीक है? True. और उसके on the side you should make things like how Chris has done with Newtonic और Joe has done with his brands. लेकिन कंटेंट से जब तुम डायरेक्ट पैसा कमाते हो ना तो ब्रांड डील्स ही एक ऑप्शन होता है मैसिवली, और यूट्यूब मनी इज नथिंग बट ब्रांड डील्स अगर बात करें, और फिर तुमको कैंसिल का डर लगता है, तुमको बहुत संभल के बोलने का होता है क्योंकि मेरी 40 लोगों की कंपनी चल रही है। करेक्ट। तो आई रियली फील कि तो फिर मैं यही अंश से भी बात कर रहा था, एंड व्हाट आर योर थॉट्स टू टेल मी कि आई वुड रादर हैव नॉट रेस टूवर्ड्स बीइंग नंबर वन, या फिर मैं 100 वैरायटी में कर रहा हूँ लेकिन क्या ऑडियंस आ रही है। बट कंपटीशन इज नॉट to be a podcast. See, I would rather have this conversation. हफ्ते में एक पॉडकास्ट डालो, चिल करो, अपना बिजनेस चलाओ. See, again, मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ the way I'm looking at it, because मेरा भी यूट्यूब चैनल है and I have a certain thought. मैं ओपनली गेम नहीं खेलता हूँ, सो मेरा ना बहुत सिंपल है. मेरा क्या है कि मैं कुछ व्यूज़ ट्रैक नहीं करता, मैं क्यूमुलेटिवली ट्रैक करता हूँ. आई डू ट्विटर, आई डू इंस्टा, आई डू यूट्यूब, आई डू लाइव, आई डू अदर कोलैबोरेशंस. आई एम मोर देन हैप्पी. आई थिंक आई एम अ वेरी सॉलिड बिलीवर इन डूइंग कोलैबोरेशंस एंड पुटिंग आउट एन इंस्टाग्राम रील वर्सेस इंस्टाग्राम रील पे 30 निकालते रहो. मेरे को दूसरे क्रिएटर से कोलैब करना है, जोग्राफी वालों के साथ. लेट्स टॉक अबाउट, सो आई स्टैंड फॉर लेट्स से कंटेंट के अंदर का साइंस जानना. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, I would love to collaborate with a KK Creates to understand, let's do a reaction video to understand thumbnail of other creators who are geography creators. I would love to do that because वो मेरे डोमेन में बैठता है, मेरे क्यूरियोसिटी में बैठता है और वो सही है करना. मैं 5 लोग उठा के 40 नहीं निकालूंगा बिकॉज ज़बरदस्ती का है. अब इसका मतलब क्या है? You have a brand persona. Let's say your brand persona is you are curious about, let's say, content, agency building, content format, advertising and business, let's say. Podcast is just one content bucket. Yeah. That's it. The moment you go into that rabbit hole of, okay, मैं ये content bucket को identity बनाऊंगा, that's a problem. Build other content buckets. Let's say for example, vlog कर रहे हो. Why can't you go and do a vlog with an ice cream shop वाला और पूछो आपके economics कैसे हैं? Will you call that as a podcast as well? Absolutely. It's a discussion right on the road itself. I think in India, people have still done the easiest way of content building, which is 2 चेयर पे बैठ जाओ, क्योंकि again वो SOP generated है, and I do understand that model as well. But I'll tell you a problem. जितने भी ये मूवमेंट हैं, ओके, मैं मूवमेंट का 2 पार्ट्स देख चुका हूँ. सो 2018 में आई वॉज विद पॉकेट एसेस. फिल्टर कॉपी वॉज अ फेसबुक चैनल जो यूट्यूब, बाय द वे फिल्टर कॉपी का व्यूज़ पता है मंथली व्यूज़ कितना था? अंदाज़ा मारो, एक अंदाज़ा लगाओ. मंथली व्यूज़ 200 million, 500 million. अच्छा. दिस इज 28. पॉकेट एसेस, फिल्टर कॉपी, डाइस, गॉबल, 2 new channels, Jambo, Nutshell. 500 million, 200 million. Gobble is a food channel. 50 million, छोटा था. Nutshell was BuzzFeed का competition, Vox Media types. It was small. KK Creates was in my team, if you know Kavya. No, A very large YouTuber. You should check. वो फटेगी. वो अभी 5 million में है. Instagram पे 2 million पे, if I'm not wrong. ये सारे X this. ये जितने भी अभी है ना, ये TVF, ये सारे X वो पुराने वाले जोन वाले हैं. So collectively the company was doing 1,000 million. It's massive. 1,000 million में आप मतलब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बैठे हुए, आपको जो करना है करो, जो भी करना है. प्रॉब्लम, लोग बोर हो जाते हैं. इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे इंसान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, उसके बाद बोर हो जाएगा. हम स्टार्स को नहीं छोड़ते हैं. आप चैनल की बात कर रहे हो, आप पॉडकास्टिंग की बात कर रहे हो, आप सबसे जल्दी निकलोगे. कोई कम्युनिटी किसी का सगा नहीं होता. नहीं, हर 2 साल बाद रिप्लेसमेंट है. और हाँ, और अभी लेट्स सपोज प्रखर इज लाइक ऑन द टॉप अभी फट रहा है ना, वो लास्ट 6 महीने पे. बट what do you think कि 2 साल बाद लाइक बिग एंड व्हाई आई एम हाईली बुलिश ऑन कि ये लाइफस्टाइल की तरह ही होना चाहिए कि मेरे को अगर मैं 10 साल भी कर रहा हूँ, मेरे को 20, 25, 30 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे हैं, मैं खुश हूँ. मेरे को नहीं चाहिए लाइक आई वुड थिंक द पर्सन हु इज डूइंग राइट, अगेन बाकी सारे एलिजेंस छोड़ देते हैं, फ्लाइंग बीस्ट. यार वो बंदे का चैनल अभी जाके कंटेंट देखोगे, उसने डाला कंटेंट वो एयर इंडिया का, उसने व्लॉग किया, उसने जिम के बारे में बात की, उसने 2 नई कंपनी खोली, नई कंपनी का व्लॉग्स डाल दिया. नाउ
वो बंदा अपनी वजह से चलता है, वो फॉर्मेट की वजह से नहीं चला है. या एब्सोल्युटली राइट. मोमेंट आप फॉर्मेट को बड़ा बनाए तो अपने से आप फंसोगे. फिर वो डेथ टू एन रेस टू एन एंड है ना, क्योंकि इसके बाद क्या, मान लो अगर एक जैसे लेट्स सपोज अभी 3 people आर फाइटिंग फॉर नंबर 1 राज, अलाबादिया एंड प्रखर, लेट्स सपोज, ठीक है, विल पुट इन अ लॉट ऑफ मनी, विल डू ऑल दिस, जो भी चीज़ें होती हैं यू नो दैट बेटर, एंड विल रीच टू द नंबर 1, ठीक है. फिर अगला बंदा उसको पुश करने की ट्राई करेगा. उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी गेस्ट की. फिर तुम कोशिश करोगे कि नंबर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है. फिर तुम्हारे कभी तो खत्म हाँ, होंगे. कब और क्या, या तो फिर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी ऑडियंस इंडिया की है, तो तुम्हारे पास नंबर नहीं आएगी, क्योंकि आपने हिंदी में बनाया है. बात तो जा नहीं सकता, अब आपने हिंदी में बनाया ना. एक बच गया तुम्हारा बॉलीवुड का, तुम वो भी कर लोगे. उसके बाद उसमें भी अगर तुम टॉप लोगों के साथ कर रहे हो, अब जैसे प्रखर गॉट आमिर खान, अब या तो आमिर खान लेवल या फिर उससे जस्ट नीचे, उसके नीचे तुम और नहीं जा सकते. यू कैन नॉट हैव टीवी सीरियल एक्टर्स ऑन योर पॉडकास्ट. सो लाइक आई रियली सिट डाउन एंड थिंक कि यार ये हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म तुम 2 साल बहुत मेहनत करोगे, दुनिया भर के जैक्स लगाओगे और यू विल गेट दीज पीपल ऑन बोर्ड, बट व्हाट आफ्टर दैट? नो, मे बी आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ टू नो इन देयर हार्ट कि 3 साल का गेम है, उसके बाद छोड़ देना है. आई थिंक दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट. मतलब एटलीस्ट माई अजम्पशन इज दिस पीपल आर स्मार्ट इनफ, बिकॉज जितना मैंने सबसे इंटरेक्ट किया हुआ है, दे आर नॉट अ रैंडम कंटेंट क्रिएटर, दे आर अ वेरी वेरी स्मार्ट बिजनेस, वेरी शार्प बिजनेस पीपल. लाइक राज का स्ट्रक्चर जाके देखोगे, फिगरिंग आउट प्राइवेट मीडिया लिमिटेड इट इज. चेक हु इज द CEO एक बार. See, off the topic of the camera, we were discussing these agency owners revealing their revenues and क्या चल रहा है. This is how much I'm making. Number of clients कितने हैं, ये मैं इतना बना रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ. What are your thoughts on that? I will refuse to accept people who are doing this have India's top 5 brand names. And by top 5 brand names मैं बता देता हूँ किस टाइप के ब्रांड. जो कि चले रिलायंस छोड़ दो. टॉप स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, जोमेटो, स्विगी, दिस दैट. वन हैंड क्लैप जिसके पास स्विगी, जोमेटो ये सब हैं, कभी सुना नहीं होगा उसको बोलता हुआ, फ्लॉन्ट करता हुआ. मून शॉट, देवया बोपन्ना और तन्मय, कभी नहीं सुना होगा. ये सब नौटंकी करता. क्यों नहीं बोलते? Number 1, clients will start thinking that you have, okay, simple है ना. If I have 10 customers and I shout every day, 10 आए, ओ कल 12 हुआ, 15 हुआ, and you are one of my client, you will be like, fuck, ये साला मेरे को टाइम नहीं दे रहा. पक्का, ओ अच्छा. And then you start rationalizing, ओ अच्छा, लास्ट महीना जो ये फटा हुआ था, इनका इंटरनल डिले किया, ओ अच्छा इसीलिए, ओ अच्छा, सालों का पैसा काटो. That's just the mentality of humans. You can't say it's an Indian mentality. It's just humans. That's all. Second is, I think Indians don't like people who are outrageously flaunting. That's not our culture, neither on our DNA. So I don't agree with this. Works well in US, by the way. Could be. I don't know. कि मतलब US वगैरह में कि that gives कि इतना पैसा बना रहा हो, वो क्या मैं बिलियनियर. I think US में मे भी काम करता होगा because पर्सनल ब्रांडिंग बहुत कैपिटलिस्ट माइंडसेट है ना. बहुत कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, प्लस पर्सनल ब्रांडिंग बहुत पुरानी चीज़ है उनका. हमारा पर्सनल ब्रांडिंग नया है. हमारा इंडिया में जॉब्स में जैसे काम करते हैं, मैं पहले जॉब करता था, ट्रस्ट मी, लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हूँ. आई एम डिसेंटली बिग ऑन लिंक्डइन इन टर्म्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव द लिंक्डइन ब्लू बैज. इन इंडिया जिसको पता है उसको पता है, वो ब्लू बैच का पावर बहुत है. वो रैंडम बाकी सारे बैचेस का पावर अलग है. सेकेंड, people, the kind of people who like my content, these are VCs, India heads and all blah blah blah. So hence I have a decently structured power वहाँ पे. Now what do I mean by that in this case? What I mean is I cannot say any jack shit on LinkedIn as well कि मेरा एक नया क्लाइंट आया, मुझे सेकेंड डे कॉल आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. लिटरली हुआ है पहले. व्हेन आई वाज इन जॉब, माई बॉसेस वर लाइक कि ये लिंक्डइन कर रहा है मतलब ये ऑफिस के टाइम में कर रहा है. सो मैं जब बोल रहा था ना, इसलिए प्रोफेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग किसी को नहीं समझ आती है. मैं कहीं पर टॉक देने गया हूँगा और मैं लिंक्डइन में पोस्ट किया, सीधा आता है तू कब गया था. दे डाउट कि ओके ऑफिस के टाइम में गया था क्या. मैंने कहा नहीं, मैं छुट्टी नहीं लिया हूँ. आर यू श्योर? And it attacks the ego on another level. और ये सबके साथ हुआ है. Anyone who is working in a job faces certain kind of things. ये जितने भी अभी नया ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कॉर्पोरेट गर्ली एट ये,
दिस विल बाइट यू इन द एस. वो जो कंटेंट में आप दिखाते हो ना कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत तगड़ा है, योर बॉस लुक्स एट दैट कंटेंट एंड विल थिंक कि ये साला काम कब कर रहा है. यही लिटरली यही चल रहा होगा. सो यार ये सब प्रॉब्लमेटिक है यार, खुद के गड्ढे खोदने वाले काम है और कुछ नहीं. वो वीडियोस नहीं होती हैं कि जैसे कि आज मैं गया फिर आई हैड ब्रेकफास्ट इन माय. मैं एग्जैक्टली उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ. ये गड्ढे खोदने वाले काम है. और मतलब स्पेशली व्हेन यू नो दैट, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब की मारामारी हो रखी है, इट्स अ शॉर्टेज इन जॉब्स. सो द सेम sentiments still apply with 10x fold in this agency client relationship. पैसा फ्लॉन्ट करना यार प्रॉब्लमेटिक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. अगेन इन द सेम यूज केस, ओके आपका क्लाइंट फ्लॉन्ट नहीं कर रहा बट आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, उसमें क्या सिग्नल जा रहा है? पैसा वो दे रहा है तुमको. पैसा वो दे रहा है, उसमें सिग्नल तुम डालो सब साला मेरे पैसे से मैं फ्लॉन्ट नहीं कर पा रहा, तू फ्लॉन्ट कर रहा है. ठीक है. सो ये सब है एंड यार प्रॉब्लमेटिक है. अगेन इमेजिन अ क्लाइंट जिसको फंडिंग क्रंच चल रहा है, उसको अपना इन्वेस्टर फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, उसके फीड में तुम आ गए, बाली में घूम रहे हो. ठीक है भाई, वो ये जस्ट ह्यूमन इमोशंस है ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो मे भी तुम्हें कॉल नहीं करेगा, वो सीएमओ को बोले. भी दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पास फंडिंग रेनी सीजन है, उसको दिख रहा है कि तुम 8 लाख रुपए महीने का. करेक्ट. और फिर वो बोलेगा कि आई बिन चार्ज, और फिर तुम्हारे फीड में देख रहा है कि तुम बाली घूम रहे हो और बोल रहे हो कि मैं मिलियनियर. राइट. फिर और प्रॉब्लम सिर्फ वो भी नहीं है, तुम अपने कमर्शियल जाके खोल के बता रहे हो, दूसरी जगह पे जाके बोल रहे हो कि मैं 70% मार्जिन में ऑपरेट करता हूँ. उसको क्या पता चला? ओ इनके पास रूम है, नेगोशिएट करो बैठ के. सही बात है. तो कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन खोल के नहीं बताता. इनफैक्ट कोई अगर बोल रहा होगा उस पर 10% में भी एक्स्ट्रा भी जोड़ लो तो मे बी वो ट्रू होगा. आई डोंट नो वट एवर इट इज. बट लाइक अगेन लेगेसी में किसी को नहीं देखोगे ओपन करता हुआ, कोई अपनी बुक्स ओपन नहीं करता, कोई भी अपने बुक्स ओपन नहीं करता. सो देयर आर सर्टेन ग्राउंड रूल्स आई थिंक जस्ट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम chaos एंड ऑल. अब बहुत chaotic बन जाता है, बहुत chaotic बन जाता है. अगेन आप फ्लॉन्ट किसको कर रहे हो आप? क्योंकि क्या 18 से 22 साल के बच्चों को. करेक्ट. सो तो मैं क्या बना रहा हूँ? मैं एजेंसी बना रहा हूँ या मैं एजेंसी बिल्डिंग का कोर्स बना रहा हूँ? चेले चपाटी बना रहा हूँ मिला जुला के. तो वो स्लिपरी स्लोप है, वो स्लिपरी स्लोप है. आप पूरा पावर देन दो ना. आपको पैसा उड़ाना है. ओके यूट्यूब में प्रोडक्शन रादर देन स्केलिंग, बेसिक प्रोडक्शन करके लेट्स से आपने 5 लाख का प्रोडक्शन पे खर्चा किया, आपके पास और 5 लाख थे, यू कुड हैव इन्वेस्ट दोस 5 lakhs इन स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, डूइंग योर ओन इवेंट्स, डूइंग मीटअप्स, स्टार्टिंग क्लब्स. वो लेजिट है, वो ग्राउंड लेवल रियलिटी है. आपने फाइट मारा, लोगों के साथ इन्वेस्ट किया. इन्वेस्ट इन फंडिंग सर्टन कॉफी मीटअप्स मे बी स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकफास्ट क्लब. आई हैड एन आइडिया ऑफ डूइंग ब्रेकफास्ट डेट्स विद फाउंडर्स. कि गेट 5 founders, just have a chat of life में क्या क्या issues चल रहा है, however I can help, that's it. I will fund the breakfast, doesn't matter. No agenda, nothing. These things help. Now इसको आप personal branding बोलोगे या क्या बोलोगे? High profile networking. And so you'll shoot this content as well? Didn't think of that, but could be a property. Generally founders will be uncomfortable in revealing because cameras लगे तो they can't openly speak about a lot of stuff because हम लोग जितना खुले में बोलते हैं ना, मतलब मैं भी आई एम प्रिटी श्योर जब मैं 100 मेंबर की कंपनी में बैठा हूँगा ना, मैं इतने खुले में नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा. आई एम प्रिटी श्योर मैं कंपनी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बोलूँगा, बट कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा. ज्ञान दे दूंगा बट ज्ञान कहाँ से आ रहा है वो नहीं, कहाँ से आ रहा है वो सब नहीं दूंगा. बुक्स नहीं खोलूँगा और कुछ नहीं करूँगा. अभी भी क्या ऊपर से खाली एक आइडिया दिया है, बाकी सब कुछ नहीं किया हुआ है. एंड या सो next thing would be like, what do you think is really wrong on the brand side? मतलब brands get content wrong. What's that? Content, okay, content को बाद में रखते हैं. ब्रांड का हायरार्की क्या है पहले समझ लेते हैं. A brand needs to invest in something called let's say branding. ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए 1000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यू कैन डू इवेंट्स, यू कैन डू म्यूजिक फेस्टिवल्स, यू कैन डू टीवी, रेडियो, whatever. Content as per you say for an example, let's say YouTube और Instagram को पकड़ लेते हैं, comes as a very small area. Now it depends on the cycle of your brand. 0 to 1 stage, which category, या आप P&G, Procter & Gamble और इन सब के लेवल में हो और कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हो. The problem starts, brand managers in the market, unfortunately, the college that they are getting passed out from, the college has not trained them for the new age brand thoughts. So college is not teaching influencer marketing होती क्या है, देखना कैसा चाहिए,
यूट्यूब क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, रेडिट क्या होता है. एंड हम लोग बहुत प्रिविलेज क्लास में बैठे हुए हैं. मैं कहता हूँ मेरा बैकग्राउंड क्या है, एंड हेंस आई कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर. एंड यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन, सो आई कम फ्रॉम कटक इन ओडिशा. बट मैंने इंटर्नशिप का वर्ड पहली बार जाके MBA में सुना. ठीक है, आई स्टिल नो इंटर्नशिप एज अ वर्ड. बहुत लोग नहीं जानते होंगे. मैं यहाँ पे बहुत प्रिविलेज कैपेसिटी में बैठ के बोल सकता हूँ वो एडटेक ने बहुत कुछ अच्छा खासा किया है, नहीं है. स्मॉल टाउन से जो लोग पास करते हैं IIM क्रैक करते हैं. जनरली क्रैक करके वो लोग जाते हैं IITs के बाद IIM जाते हैं. जनरली दीज आर पीपल हु कैंट स्पीक ग्रेट इंग्लिश, ग्रेट हिंदी. कॉलेज में ही करते हैं. वो कॉलेज का तो 2 साल है, पूरा फाइट लगता है इन गेटिंग हायर मार्क्स, डूइंग ग्रेट इन बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. कि बाकी जो बाहर जो चक्काचौंध चल रहा है ना, AI दिस दैट, ये सब ना कॉलेज वाले अवेयर हैं ना वो वाले अवेयर हैं. फिर वो जाके उतरते हैं मार्केट में उतरे. लेट्स से पहला जॉब की पोस्टिंग हो गया टाटा कम्युनिकेशन में. वहाँ पे तो इंस्टाग्राम का कुछ लेना देना ही नहीं है. फिर आप गए तो मार्केट ना पूरा डिवाइड हो गया है. देयर विल बी 5 people who know what is content and there will be 100 people who have no idea about what is content. बट मार्केट में जितने कंपनीज हैं जिनको कंटेंट चाहिए दैट इज एनफ, बहुत बड़ा है. तो मार्केट में डेफिसिट है. अब मार्केट में जब डेफिसिट है, इसके बीच में क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ एजेंसीज हु आर ग्रोइंग फास्ट इज वेरी हाई. द नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स जो इनको एजेंसी को मैंडेट देगा इज वेरी लेस. यहीं पे पूरा गैप चल रहा है. एजेंसी वाले आके अपना एजेंडा बेच रहे हैं. डिसीजन मेकर को पता नहीं है क्या करना है, वो अवेयर ही नहीं है. ना वो अवेयर करने के लिए मार्केट में इनफ अपस्किलिंग कोर्सेज हैं, बिकॉज कोर्सेज भी अपने अपने एजेंडाज बेच रहे हैं. तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम फटा हुआ है. अब ये जब सिस्टम फटा हुआ है, सब अपना अपना गेसवर्क मार रहे हैं. यू विल गो एंड यू विल से इंस्टाग्राम करना सही है एंड यू विल सेल योर ओन एजेंडा. मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपने ऊपर वाले बॉस को, क्योंकि अभी से 1-1.5 साल 2 साल पहले यही हो रहा था. क्योंकि ब्रांड ओनर्स को कुछ नहीं पता है. उनको लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे अगर नंबर आ जा रहा है तो हमारा कंटेंट जा रहा है, और उनको नहीं पता है कि वो लड़की नाच रही है प्रोडक्ट लेके आपका, तो उस नंबर का कुछ नहीं है, कोई यूज केस. करेक्ट. वो आज भी भेजा जा रहा है ना, वो आज ही भेजा. पर क्या है दिक्कत? दैट्स वेयर माय क्वेश्चन स्टेम्स फ्रॉम, कि ये आज भी हो रहा है. यार मैं आपको एक पॉइंट कह रहा था, राइट. पूरा रियलिटी मुझे ये पता चला दैट मेजॉरिटी ऑफ द एजेंसी बिल्डिंग रिलेशनशिप इज़ नॉट जस्ट कि काम कितना बढ़िया है, इट इज़ पीपल. ना पीपल का मतलब क्या है, मैं ब्रांड मैनेजर हूँ, मेरा बॉस मेरे ऊपर दिमाग खराब कर रखा है, व्यूज़ चाहिए. कौन इसको बैठ के सिखाएगा कि ओके व्यू ले, कहाँ पे सस्ता व्यू आएगा, कहाँ आप पर्फ वाला कितना चार्ज करेगा, ओके नहीं ये इसमें ना उसको स्पाइक नहीं आएगा, वो पर्फ समझता ही नहीं, उसको तो चाहिए थोड़ा नाच करना. अच्छा तुम लोग कितना दोगे, अच्छा इतना, थोड़ा सस्ते में करो ना, करो गिरा. फॉलोअर्स नहीं आ रहे, हमको तो फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, तो कितने में कितना फॉलोअर बढ़ जाता. अरे तुम क्या कर रहे हो, मार रहे हो अपना अकाउंट यार. तो कर लिया उसने डील. आई सी दीज ज्वेलरी ब्रांड्स बिकॉज आई वर्क विद ज्वेलरी ब्रांड्स हैव 900 समथिंग फॉलोअर्स, एंड व्हेन यू चेक देयर एंगेजमेंट 36 likes, 40 likes, like they have killed their pages. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुडविल, और कि जब कोई पेज खोले तो 900 के फॉलोअर हैं तनिष्क के. But what will you as a business person? I would rather go, if you know Roads by Haley, I would rather go that route than this. कि भाई प्लीज सीरियस होके बनाओ, कम्युनिटी ड्रिवन काम करो, डेप्थ में खेलो rather than वाइड होके. बट यहाँ पे ओके फ्रॉम नॉट व्हेन यू गोइंग VC route. हाँ, मैं यहाँ पे हल्का सा खाली टच करके फिर वापस आता हूँ. ये इसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की मैं बात कर रहा था. मार्केट में इंडिया में MSME सेक्टर बहुत बड़ा है, बट तुम्हें पता है यहाँ पे तुम लॉजिक घुसा के नहीं बिजनेस निकाल सकते. इंडिया नहीं है उसके. करेक्ट. यहाँ पे जो चाहिए वही दो, निकालो. तो MSME में जब आप गेम खेल रहे हो, यहाँ पे अपना लॉजिक और आपका मार्केटिंग दिमाग मार के बिजनेस खेलो, पैसा निकालो, निकलो वहाँ पे. या तो वो ये वाली कंपनी बनाओ. पर जो स्टार्टअप्स बोलते हैं अपने आप को, जो कूल अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वी वांट टू रियली कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड मेक दैट कनेक्ट, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं. अगर उनके लिए करोगे देन एजेंसी का पोजीशनिंग अलग होगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज एजेंसी बिल्डिंग में व्हिच गेम यू आर प्लेइंग, यू हैव टू जस्ट डिसाइड. प्रॉब्लम इज जब आप ये करना चाहते हो और आपके कैश फ्लो फटे हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पे एक एजेंसी मिल गया, आपने ले लिया, बट आपकी जो इंटरनल कल्चर थी वो कूल वाली कल्चर थी. तो कूल वालों ने रिवोल्ट किया है, क्या घटिया काम दे रहा है मुझे, और इन्होंने 2-3 पेपर डाल दिए, नोटिस पीरियड से आ गया. यहीं पे पूरा आपका हिलता है और ये सारी एजेंसी इसी जोन में जाती है. हम भी उसका पार्ट हो चुके थे एक बार. हैव कम आउट ऑफ इट. आई डोंट नो, देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई हैव टू से यस टू थिंग्स व्हेन थिंग्स आर नीडेड, बट एटलीस्ट हैविंग अ वेरी क्लियर फोकस दैट
मैकेंजी बनाना है, लार्ज टिकट्स, प्रीमियम, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, सब बंद करके स्कूल में मूव कर लूंगा रादर देन कमिंग टू दिस एरिया इज द अवेयरनेस दैट इज नीडेड. 10 लाख रुपए महीने बनाओ, ठीक है, मेरे लिए कि 10 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, यू रियली डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी अ लॉट, ठीक है. सो आई पर्सनली आई जस्ट वांट टू मेक 10 lakh rupees a month. Maybe this would change, but for now I really think कि 10 लाख that's a great number to have. Honestly, मतलब मेरा तो aspiration honestly speaking is different. मेरा तो aspiration इतना है कि मैं 4 लाख भी बनाऊँ ना, मैं honestly speaking मैं 4 लाख बनाऊँ और मेरा जब मन हो, जिसको मन हो, मैं ना कर सकूँ. Absolutely, and that's where this comes from कि उतना मैं बनाऊँ कि मेरे को कंटेंट में बनाऊँ अपने शौक के लिए, ठीक है, कि मेरे को सुकून मिलता है कंटेंट बना के. दैट्स द होल थिंग, ठीक है. तो मैं उस चीज़ के लिए बना रहा हूँ. 10 लाख रुपए पॉकेट में आ रहे हैं, घर वाले खुश है, सब खुश है, मेरे को जो चीज़ खरीदने में खरीद सकता हूँ ये. तो फिर वो रेस टू द टॉप एनीवेयर इज नॉट नीडेड. चाहे वो रेस टू द टॉप एजेंसी में हो, चाहे वो रेस टू द टॉप पॉडकास्टिंग में हो. या देन व्हेन यू रियली वांट टू डू अ रेस टू द टॉप, देन यू फकिंग गो एंड किल इट, ठीक है. फिर जब जाओ तो फिर वो जिस घोड़े की नाल की तरह ऐसे करो, फिर जाओ और रेस टू द टॉप खेलो. कर ये रहे हैं लाइफस्टाइल वाला, और फिर वो है कि हम स्केल क्यों नहीं कर रहे. तो 15,000 20,000 वो फिर स्केल नहीं हो पाता है, ठीक है. या तो स्केल कर लोगे या फिर वो, और फिर दोनों का अप्रोच ही कम्प्लीटली डिफरेंट है. ट्रू एंड लाइक आई डोंट थिंक एजेंसी बिजनेस बिल्डिंग इज फॉर स्केलिंग. No, it is for scaling. नहीं तो स्केलिंग टू एन एक्सटेंट है ना. To an extent. Scaling भी वो, but it is not for everyone. It is not for everyone. It is very tough. It is not easy. Yeah, service business is not easy. Yeah. So let's just talk about it. When you say very tough, because a lot of people want to get into this. Why do you say very tough? And who is this not for? Who is agency, being an agency owner not for? Let me tell you, absolute no किसके लिए है. If you are right out of your college, do not start an agency. Very bad जो भी बेच रहा है, and I exactly know कौन ये सब आइडिया बेच रहा है. I hate those people to the core. यार मैं भी एथिक्स मार के बहुत काम करता हूँ. आई एम नॉट अ वेरी एथिकल पर्सन इन दैट केस, बट हरामी नहीं हूँ उस लेवल पे. इट इज़ एन एब्सोल्यूट नो फॉर एनीवन जिसका एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है इन अ फील्ड. इट इज़ एन एब्सोल्यूट नो फॉर जो खुद का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में नहीं है. आपको एक चीज़ का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना ज़रूरी है. विशाल दयामा इज़ अ ग्रेट राइटर, किलर राइटर की वो मूनशॉट चालू करके अभी ब्रेन डेड अलग सा बिजनेस चालू कर सकता है. तन्मय भट्ट सिर्फ क्रिएटर नहीं है, ही इज एन सेकेंड टाइम को फाउंडर. AIB was the first company that he has built, and you need a subject matter expert in just anyone case. So anyone who is not a subject matter expert, absolutely no. Third, do not put tags or designations that is a false hope selling to yourself and to people. Example, the amount of the number of people you will see on LinkedIn जिन्होंने इतना लूजली लिखा है ना ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट राइट आउट ऑफ कॉलेज, एंड स्पेसिफिकली फीमेल्स मैंने नोटिस किया है. पता नहीं, देयर इज समथिंग ऑड. आई एम नोटिसिंग दैट द नंबर ऑफ फीमेल ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट इन इंडिया जिनको ब्रांडिंग नहीं पता है, ब्रांड बुक भी क्या होता है नहीं पता है, वर्सेस मेल इज डिफरेंट. मेल परफॉर्मेंस मार्केटिंग, लीड जनरेशन एक्सपर्ट डाल देते हैं. Why do you think that is? Masculinity versus femininity, ऐसा कुछ सीन है क्या? I think numbers versus creative. I think Yeah. पता नहीं, could be. I think female just think कि okay creative thing is easy and males think कि मेरे को नंबर आता है. Could be vice versa also, but कभी मैंने पैटर्न नोटिस नहीं लिखा. लेकिन female participation. I would say कि with males it's like कि I want tangible things जो मैं justify कर पाऊँ. Could be, but no, I don't think that is the case. I think number of engineers in India is high. Hence number of performance marketers in India in male is high. Because engineers को लगता है नंबर है तो परफॉर्मेंस में ये है वो है, एंड क्रिएटिव आर्ट्स इज डिफिकल्ट एंड ऑल इन दैट केस. बट इन लोगों का मतलब यू डोंट नो हाउ मच ऑफ हार्म यू आर डूइंग टू योरसेल्फ. उसमें क्या हो रहा है ना, जो हिट क्लब बन रहा है ना, आई एम पार्ट ऑफ दोज मीटअप्स व्हेन 10 CMOs मीट. ये साला ये नौटंकी कर रही है, ये इसका ना आया था, इसको तो मैं फर्स्ट राउंड में ना बैठाऊँ. यार वो जो ओपिनियंस है ना 10 CMOs के आगे, जैसे हम बात किए ना, इंडस्ट्री इतनी छोटी है. इंडिया में सारे स्टार्टअप्स के CMOs को अगर खड़ा कर दोगे ना, 500 से ज़्यादा भी नहीं होंगे जो टॉप शॉट हैं. उनमें से एक भी बंदा खड़ा होकर वहाँ पे बोला ना कि ये 4 लोगों के साथ मैंने काम किया था, नहीं है, ख़त्म मार्केट पूरा 1 साल तक आपका. एंड पीपल फॉर्म ओपिनियंस बेसिस प्रूफ ऑफ वर्क. Indians are biased, I will agree, but not harami level bias. They can look through the bullshit कि आपको काम आता है नहीं आता है.
एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज के पास आउट हो तो आप नहीं कर सकते हो. यू कैन बी अ कॉलेज का पास आउट, रन अ यूट्यूब चैनल, डू ग्रेट प्रोडक्शन एंड से कि बॉस मेरे को आता है क्योंकि मैंने किया हुआ है. And exceptions are everywhere. And exceptions are everywhere and it is absolutely okay. You can't say LinkedIn पे मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट लिखा ब्रांडिंग के बारे में ChatGPT से निकाल के खुद भी लिख के हेंस मेरे को ब्रांडिंग आता है. दैट इज ऑड. You have put out videos, hence you can claim. But not putting video and talking in text की production कैसे करते हैं, then saying मैं production expert हूँ is off. Yeah, absolutely. That is the odd And area. that is a lot happening with agency and all that because I see a lot of these कि वो किया भी नहीं है and then you're talking about. I think वो हो भी रहा है because again ये सब उस कोर्स का पार्ट है जिस कोर्स में बोला जा रहा है कि आप बोलो कि आपको पता है, hence आपको क्लाइंट मिलेंगे. Absolutely. I don't think क्या it's होता है ना, automatically आ रहा with है. Indians and what they do with courses is कि ये लोग कोई बाहर वाले का कोर्स लेते हैं, Yeah. उसको रीपैकेज करते हैं and then they sell it. True. ठीक है, क्योंकि अब बाहर वाला 40,000 में बेच रहा है, उन्होंने एक कोर्स खरीद लिया, अब वो इंडिया में क्या कर रहे हैं क्योंकि पता है कि 40,000 कोई देगा नहीं, तो 5,000 4,000 में कैसे बेचे, तो उसी चीज़ को करते हैं. देन उसमें से 4 कमेंट्स आते हैं ग्रेट वैल्यू, हेंस वो ग्रेट वैल्यू का जो कमेंट होता है वो बन जाता है एड का पार्ट. दे रन इट एज एड्स एंड देन दैट्स हाउ मोर पीपल कमेंट. या मैं मेरे को इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इन सब चीज़ों को लेके. आई डोंट थिंक दैट आई एम क्वालिफाइड एनफ टू create a course on agency building. I think I'm very I would rather run a community. I would rather run a community. Course is completely different thing. 100%. कि मैं बोलूँ कि भाई मैं हर महीने के तुमसे 3,000 रुपये लूँगा, 15-20 लोग मेरे कम्युनिटी में होंगे, हम लोग हर हफ्ते एक सेशन करेंगे. एक मैं कोर्स भी अगर करूँ, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि आई हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडल्स. सो ग्रोथ स्कूल पे मैंने 8 कोहॉर्ट्स लिए हैं, एडवांस कंटेंट मार्केटिंग का, डेटा एनालिटिक्स, ये सब सिखाने का. मैंने अपग्रेड के साथ पढ़ाया हुआ है. मास्टर्स यूनिट पे आई एम ए फैकल्टी मेंबर, अभी भी हूँ. लास्ट 2 साल से पार्टनरशिप चल रही है. सो अलग अलग मॉडल्स में मैंने किया हुआ है, ऑफलाइन ऑनलाइन, करिकुलम बिल्डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. मुझे क्या लगता है, आई नो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग आई कैन टीच, ग्रोथ मार्केटिंग आई कैन टीच, कॉन्टेंट लेड ग्रोथ आई कैन टीच, प्रोडक्शन कैन नॉट टीच. आई विल नेवर एवर से एनीथिंग अबाउट प्रोडक्शन. मुझे नहीं पता लाइट्स में क्या होता है, साइंस क्या होती है लाइट की. मुझे पढ़ने का मन है, बट मैं पढ़ के भी नहीं बोलूँगा. अगर मैंने कल पढ़ भी लिया ना तो भी मैं नहीं बोलूँगा कोई फोरम पे जाके, या मैं कमेंट भी नहीं करूँगा. मैं ये कोट करूँगा, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था एटलीस्ट. नाउ अभी मेरा 1 साल हो गया एजेंसी बिल्डिंग में, स्टिल मेरे को हिम्मत नहीं होती है कि मैं जाके चालू करूँ कि एजेंसी बिल्डिंग का कोर्स कैसे होता है. बट आई हैव आइडेंटिफाइड कि चलो ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स कोई पढ़ा नहीं रहा है प्रॉपरली इन कि रैशनल डेटा देख के कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. सो आई जस्ट स्टार्टेड, अभी एक छोटा सा पायलट कर रहा था बहुत टाइम बाद आके, एक बैच 1 चालू किया हुआ था. सो मैंने सिंपल बोला, आप अगर एजेंसी ओनर्स हो, आप अगर ब्रांड मैनेजर्स हो, आपको अगर प्रोडक्शन कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो, हाउ डू यू टेक डिसीजन लुकिंग एट डेटा एंड गिव फीडबैक टू योर प्रोडक्शन एजेंसीज कि इस टाइप का कंटेंट बना के दो, सो दैट देयर लाइफ इज ईजी एंड योर लाइफ इज ईजी एंड यू आर नॉट होल्डिंग द नेक कि तूने गलत मेरे को वीडियो दिया था, एंड यू आर नॉट आस्किंग योर सेल्फ कि आपने ब्रीफ ही गलत लिखा था, बिकॉज आपको पता नहीं है ब्रीफ कैसे लिखना है. इज़ अ वेरी माइक्रो नीश. अभी क्या, मैं छोटा सा कोहॉर्ट एक रन किया, मैंने बोला मेरे को 11 बच्चे चाहिए, बट 11 मेरे को ब्रांड मैनेजर्स चाहिए जिनका मुझे करना है. चालू किया, अभी वो हो रहा है 29th को. आई नेम द कम्युनिटी एज कॉल्ड डोंट गेस. नाउ आई एम मूविंग द कम्युनिटी टू कॉल्ड डोंट गेस क्लब, कि दिस इज नथिंग टू बी गेस्ड, एनीथिंग दैट इज रैशनल इन कंटेंट शुड बी डन. सो everything data driven. So basically my course became a funnel towards moving it to a community, but it is very very focused कि मेरे को 100 brand managers की community बनानी है. That's very Alex Hormozi model. Why? Because you are getting brand managers. Correct. That's how Alex Hormozi positions himself, and then these brand managers will say, I don't want to fucking do it. Let's get Sindhu on it. Correct. हाँ? Exactly. So उसका भी सेम है, 3 मिलियन जो कर रहे हैं. Exactly. मैं वहां तक उसको खींच के जाऊंगा, फिर 3 मिलियन के बाद Alex हेल्प कर देगा 20 मिलियन पहुंच. Correct. So that's a great way to because now difference, my customer acquisition cost here, I will not try to rationalize कि मैं customer acquisition cost को multiply करूँ, because अगर मैंने वो rationalize किया, then I have to decrease the cost, run perf ads and start to left right center sell to everyone and anyone. मुझे वो route पे उतरना पड़ेगा. मुझे क्या लगता है, प्रॉब्लम क्या है, आपका जो पैसा बनना है ना अपसेल में, वो अपसेल में तो कहीं भी बना सकते हो. वो अपसेल में अगर एजेंसी में बना सकता हूँ, एंड इफ दैट अपसेल इज लार्जर, बना उसको. मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज वही फनल के अंदर ही निकले. Absolutely. So, यहीं पे कोर्स का बेहतर अपसेल उसका बड़ा अच्छा कोर्स नहीं है कि मेरे को उसका अपसेल कहीं और भी तो हो सकता है. वो ये भी तो हो सकता है कि अब ब्रांड मैनेजर्स मेरे से बिजनेस करवाएंगे. एग्जैक्टली, दैट हैज टू बी द अपसेल. एग्जैक्टली. लाइक शरण का एक मॉडल है, आई डोंट नो. सो अभी क्या कर रहा है,
शरण का फनल अगर नोटिस करोगे तो शरण सेल्स यू अ 999 और समथिंग ऐसा एक कोर्स, वो कोर्स कन्वर्ट करता है, एक ऐप है विच इज़ अ 1% क्लब कम्युनिटी, 1 साल का मेंबरशिप देता है, नॉर्मल है. What was very beautiful, what was very interesting is they started something called 1% Club Experiences. मुझे याद नहीं है ठीक से, ऐसा कुछ था. Where every शहर में कॉफ़ी मीटअप्स हो रहे हैं, रन मीटअप्स हो रहे हैं, एंड इफ़ यू हैव द एक्सेस ऑफ दैट 1 ईयर का, तो आप इसका एक्सेस का पार्ट हो सकते हो. ना वो क्या एनहांस करता है, वो ये एनहांस करता है कि आपको मैंने जो कोर्स बेचा कि पैसा कैसे बनाना है, मैंने आपको बुक्स नहीं पढ़ाया. मुझे भी पता है आपका पैसा तभी बनेगा जब आपके कॉन्टैक्ट में एटलीस्ट 3 माइक्रोसॉफ्ट के लोग या 3 मैकेंजी के लोग होंगे, और आप दिन में एटलीस्ट कान में आपके 3-4 शब्द पढ़ेंगे कि होता क्या है, पैट क्या होता है. पैट कभी पता नहीं चलेगा अगर कान में नहीं पड़ेगा. वो एलेक्स 50 बार भी चलाए, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में. सो दे कन्वर्टेड इनटू बेसिकली फनलिंग प्लस इवेंट्स प्लस कम्युनिटी एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली वेल. आई थिंक ये मुश्किल है इसलिए कोई नहीं करता, बिकॉज इसे बहुत गधा मजूरी है. क्या सीधा फनल में बेचना ईजी है, 90 का लिया है, नेक्स्ट वाला करो, 5 एक्स्ट्रा कोर्स कर लूंगा तो 2000 में बेच दूंगा. बट फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं ना. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑफलाइन कम्युनिटीज बिल्डिंग एंड व्हाट्स द फ्यूचर डू यू थिंक विद ऑफलाइन? एग्जाम्पल है ना, मेरा बहुत ऑड थॉट्स है, बिकॉज फॉर ब्रांड्स इट्स अ वेरी ग्रेट टॉपिक, बिकॉज ब्रांड्स जब बोलते हैं ना ऑफलाइन कम्युनिटी बनानी चाहिए, लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आदिदास एंड लेट्स से रिबॉक, दे हैव अ रनिंग क्लब and also they have a running app if I'm not wrong. I used to have chats with their internal folks and all, and they did not disclose entirely, but I was not getting a very good vibe ki that made any sense, because बैंगलोर में दौड़ क्लब्स, रन क्लब्स का ज़्यादा एंगेजमेंट है दैन आदिदास का रन क्लब. एंड इफ रनिंग वॉज अ ह्यूज रेज जब आदिदास कर रहा था, तो ये रेज होना चाहिए था. बैंगलोर में जो रन क्लब फटा हुआ है, और जो दिल्ली में फटा हुआ है, जयपुर में फटा हुआ है, उसका क्लियर सिग्नल देखोगे. Those bloody clubs are not for running, they are for dating. Yeah. The content that is being made, every content you can see that is being strategically taken, shots of women being there. And I will refuse to accept कि कैमरामैन को नहीं पता, एडिटर को नहीं पता, और वो लड़की को भी नहीं पता. It's IPL effect basically कि IPL में लड़की to get more audience is to get more. Exactly. Now I can say, now anyone from that community can say कि hey, हम तो अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, बिकॉज लोग भाग रहे हैं तो फिट हो रहे हैं. I will fully agree. But marketing तुम्हारी वो है. Now I think so इसका मतलब क्या है, यूज केस हमेशा से था, नर्व नहीं पकड़ा. यूज केस तो इन एडिडास और इसने क्रैक नहीं करा बेसिकली. इन्होंने क्रैक नहीं किया. लेट्स से असली कहाँ से आ रहे हैं लोग ऑडियंस? वो क्रैक कर भी नहीं पाएंगे. क्यों? उनके ब्रांड बुक में डेटिंग बैठता नहीं है. उनके ब्रांड बुक में फिटनेस बैठता है. सो बट यू कैन रन इंडिपेंडेंट क्लब्स. सो हियर इज व्हाट माय थॉट्स आर. मुझे लगता है ब्रांड्स के पास एक बैगेज होता है ऑफ ब्रांड बुक कि इतना रेस्ट्रिक्टिव होते हैं कि वो कम्युनिटी उतार नहीं पाएंगे, बिकॉज कम्युनिटी बाय डिजाइन ऑफलाइन फ्लेक्सिबल इन नेचर. करेक्ट, नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर. So independent folks are more suitable to run better communities, and brand should sponsor them. It's exactly like yeah, it's a great point. Yeah. Like a Bira will not say कि मैं अपना इवेंट कंपनी बना के मैं अपना इवेंट फेस्टिवल चालू करेगा, स्पॉन्सर करेगा. सिंपल. ये अभी ब्रोकोड जस्ट स्पॉन्सर्ड प्रीटी गुड रोस्ट. ठीक है, ग्रेट वे टू डू ब्रांडिंग रादर देन, और अपना ही रोस्ट करवा रहे हैं. कितना अच्छा टॉप वे ऑफ डूइंग इट है. अब लेकिन अभी सेम चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हैविंग आशीष सोलंकी ऑन, हैविंग दीज पीपल ऑन, और मैनेजमेंट प्लस अपनी टीम इन्वॉल्व करना, तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन तुम कम कर लो, लेकिन बट ब्रांड गुडविल के लिए कितना अच्छा है. ट्रू. ऑल्सो कम्युनिटी इज हार्ड. मतलब मैंने ट्राई किया है, जुपिटर में ट्राई किया, सब में ट्राई किया. इट इज वेरी हार्ड. द ऑपरेशंस एफर्ट इज सो इमेंस. एंड इंसान का ना एक इनेट थॉट है, कोई ब्रांड के अंडर का कम्युनिटी पे रहना नहीं चाहता. लोगों को ना वो अंदर घुसा हुआ है दिमाग में. इफ अश्मित इज रनिंग हिज, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, हसल कम्युनिटी, हो जाएगा. द मोमेंट लेट्स से अश्मित इज रनिंग अ हसल कम्युनिटी फॉर अ ब्रांड, और वो ब्रांड का टैग लगा हुआ है हसल कम्युनिटी बाय दिस, वो ना एक मेंटल ब्लॉकर है. वो जाना नहीं चाहते. कम्युनिटी वालों के लिए है, और लोगों के लिए है. लोगों को लगता है साला आके कुछ बेचेगा, पक्का आके कुछ बेचेगा, उसमें नहीं चलता. जबरदस्ती का पैसा. पावर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय, वो नहीं करना चाहिए ब्रांड्स को. डू यू थिंक सो? वो सटल प्रमोशन हो सकता है कुछ टी-शर्ट्स. मेरा ना थोड़ा इसमें थोड़ा रेबेलियस थॉट है. अगर मैं ब्रांड मैनेजर हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा.
आई नो फॉर अ फैक्ट मेरे सारे सीनियर्स, मेरे सारे एक्स बॉसेस बिलीव वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन स्पॉन्सरशिप्स. मुझे क्या लगता है ना, मैं लोकल मार्केट्स में स्पॉन्सरशिप करूंगा, Tier 2 Tier 3, बिकॉज वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना है. ये जितने भी Tier 1s है ना, इनको सिर्फ ये वैल्यू वाले लोग, इनको वैल्यू वाले लोग हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है. इनका तुम्हारा लोगो दिख गया इनको, ये लोग मजाक उड़ा देते हैं. लाइक जेनजीज पास आउट ऑफ क्राइस्ट फॉर एन एग्जाम्पल would love if there is a very well thought specific event that is designed according to the brand. For an example, Sprite का clear है, let's say मैं एक event organize करता हूँ, let's say for an example which is slam poetry, which is let's say confessions, honest, transparent, clear confessions, clear A के साथ मैं बैठा देता हूँ, चलेगा because वो designed है. वर्सेस स्प्राइट को लेके कोई भी इवेंट चल रहा है, चिपका दिया स्पॉन्सर्ड बाय दिस. वो इसलिए कॉलेज फेस्ट के किसी भी इंसान से बात करोगे आज के डेट में मौत आ जाती है उनको स्पॉन्सरशिप निकालने में. वो इतना गिर गया है स्पॉन्सरशिप्स. हाउ डू यू थिंक रेड बुल इज एबल टू क्रैक इन सच अ वे विद कम्युनिटी? क्योंकि रेड बुल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद रेड बुल. वो कैसे क्रैक कर पाता और इंडियंस क्यों नहीं कर पा रहे? And then I have a follow-up question to this. So जब मैं इनसाइडर में था, मुझे अच्छे से याद है मेजॉरिटी ऑफ द इनसाइडर स्पॉन्सरशिप्स वे रेड बुल मैक्स टू मैक्स. जब वेरी हाई प्रॉपर्टी पैसा नहीं देता बकाडी, पैसा नहीं देता रेड बुल, कहीं देता है, मोस्टली इट्स ड्रिंक्स, कहीं देता है. बकाडी देता था. सो NH7 वीकेंडर बकाडी पूरा का पूरा उठा का था. इट वाज बकाडी NH7 वीकेंडर ओनली. बकाडी को करना पड़ेगा बिकॉज सरोगेट मार्केटिंग के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है. दे कांट डू एड्स और एनीथिंग. सो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. रेड बुल का अभी सीन ऐसा है दैट मेजॉरिटी ऑफ द रेड बुल राइट नाउ इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग वाया स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडरशिप. स्टूडेंट रेड बुल एम्बेसडर आप नोटिस करोगे कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स में गुड लुकिंग गाइज एंड गर्ल्स, मोस्टली गाइज तो नहीं, गर्ल्स मोस्टली को करके छोड़ देते हैं बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड ये इन्फ्लुएंसर वाले गेम में ज़्यादा है. उनके वेरी इंटरेस्टिंगली इंस्टाग्राम बायो पे लिखा होगा रेड बुल स्टूडेंट एम्बेसडर इज द वर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो एक मूवमेंट उन्होंने चेंज किया है. पहले जितने स्पॉन्सरशिप्स थी उस नंबर को गिरा के इसमें ज़्यादा पैसा फूंका हुआ है इन लोगों ने. तो पैसे देते हैं उनको? पैसे नहीं देते हैं, दे गिव देम. सो बेसिकली व्हाट दे से इज तुम अपने कॉलेज में फेस्ट करवाओ, जब वो या इवेंट्स करवाओ, वो इवेंट के अंदर माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है. सो वो खर्चा है ना, वो कंपनी के लिए खर्चा ही है. नाउ दैट्स वेरी मार्जिनल ना, वर्सेस दैट इज वेरी मार्जिनल. सो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ दिया है पूरा का पूरा. प्लस फोकस, अगेन फोकस. हाँ, बहुत उनका तगड़ा है कि वो 2-3 एक SKU के साथ ट्रू बंदा खेल रहा है उस तरीके से. What are your thoughts on Rode being sold by became a $1 billion company if I'm not wrong? Rhodes by Haley. So, or these international influencers selling products. Yeah, selling products, building that company and then selling those, मतलब selling the companies. And इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं, इंडिया में नहीं हो सकता बिकॉज you have worked with Raj Shamani, you know all the ins and outs. So he was building a House of X. I don't know what is happening right now. परफ्यूम लॉन्च हुए, उसमें कुछ खास हो नहीं पाया है इंडिया में. People who have tried to build brands, influencer led. बहुत लोगों का है ना इसका. फोकस लॉन्च किया इसने, फुकरा इंसान वगैरह ने. तो ये सारे लोगों ने प्लस, लेकिन इंडिया में नहीं कर पाते हैं. व्हेन यू इट गोज आउट, रोड्स अभी पे किया है, वेयर इंडिया में कोई कर ही नहीं पा रहा है. सो इंडिया पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, हैविंग वर्कड विद अ बंच ऑफ फोक्स एंड नोइंग अ लॉट ऑफ फोक्स. देयर इज अ आइडिया में बहुत जगह बोला हुआ हूँ एंड आई स्टिल होल्ड ट्रू टू द सेंटिमेंट. द गॉड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिएटर्स इज प्रॉब्लमेटिक. व्हाट डू यू मीन? What do I mean is this: a creator is a great chief content officer, is a decent. Okay, I refuse to accept this Tanmay Bhatt का बहुत famous video, which is creators can be a great CMO. Absolutely rubbish statement that has been made. Great for views. इसके बारे में हमने इतनी बात की है इंडस्ट्रीज के बॉसेस के बारे में जो तन्मय को जाके बोले नहीं होंगे. बट CMO handles P&L, sales, costing, margins, data science, predictability. उसके पास माल कितना आता है, CMO कंटेंट नहीं देखता है. CMO कंटेंट नहीं देखता है. CMO को रिपोर्ट करता है कंटेंट हेड. So a content creator is a great chief content officer or a content head, not a CMO. It's a very far. But also Anurag, and you can continue that. Anurag also told me कि just because तुम अपने कंटेंट में नंबर्स ला पा रहे हो doesn't mean कि तुम ब्रांड के कंटेंट में ला. Exactly, and it's a great point I feel, because अगर content creators are like artists.
अगर आर्टिस्ट मनमौजी होते हैं ना. एग्जैक्टली एंड लाइक एवरी आर्टिस्ट, अगर क्रिएटर को पता होता कंटेंट कैसे चलता है, द नेक्स्ट अलीजियंस और द अलाइनमेंट शुड हैव बीन क्रिएटिंग अ कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म. कौन सा कंटेंट क्रिएटर लार्ज स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म चला रहा है? एंड आई विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि इनको पता नहीं है कि वो करना होगा. दे डोंट नो हाउ टू डू इट. सो दे प्राइमरली डोंट नो हाउ टू डू इट इन दिस केस. नाउ अभी आते हैं प्रोडक्ट का सेम सिनेरियो है. आप अपने आप को CEO के हिसाब से नहीं बैठा सकते. यू आर नॉट द राइट पर्सन. आपको आपका कंटेंट पालना है, फिर उसके बाद आपका ये करना है, फिर आपको हायरिंग देखनी है. आपका ईगो नहीं झेल सकता कि एक मैं अपना सीनियर वाला बंदा लेके आऊँ जो मेरा 10x का ईगो लेके आता है. नहीं झेल सकता. जब तक इन इंडिया यू डोंट क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी, you as a content creator become an advisor or an equity stakeholder of minority, not even equal. And I'm very very clearly stating it. 50-50 equity I don't think होनी चाहिए. उसका रीज़न बहुत सिंपल है. And I don't think गौरव का जो स्ट्रक्चर है, it is also 50-50. गौरव तनेजा. Okay. With him, yeah, Gaurav has more stakes. Gaurav has more stakes. That is very odd, I feel. Because he is not the main guy. He doesn't run the company. It is not running the company. He has a CEO. It is very 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 problematic. See, he can. But ये आगे बनेगा ना. ये है कि अभी thought through नहीं है. ये अभी thought through नहीं है. I think वो 30-70 रेशियो में था वो. Shark Tank पे बोला था. Shark Tank पे बोला था. बहुत सारे जजेस को दिक्कत थी उससे. मुझे बाकी कोई चीज़ से दिक्कत नहीं थी. I think at least 50-50 कर लेता. उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम कर लेता in this case. But thought यही चालू होता है. इंसान यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर एक तो CEO अपॉइंट नहीं करेगा, खुद CEO बनेगा. इन दैट केस कर भी लेगा तो फिर उसमें भी उसको कर भी लेगा तो उसमें फिर गॉड कॉम्प्लेक्स 10% इक्विटी देके बोलेगा मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है. आपको तो 2 साल लग जाएंगे डिसएसोशिएट करने को कंपनी से. प्लस कभी अगर तुम जैसे ये सब छोटी छोटी चीजें ना, कभी तुम दूसरे बंदे को बाहर लेके भी नहीं होगी कि मेरी टीम में और भी लोग हैं कि जो कर रहे हैं पीछे से काम. उसको कभी क्रेडिट नहीं दोगे. आप फिर दोनों कंपनीज, ओके, यू हैव अ कंटेंट टीम एंड यू हैव अ कंपनी कंटेंट टीम. मैंने बहुत जगह देखा हुआ है ये सेम कंटेंट टीम को इसमें लगा देते हैं कि इसका खून चूसो पूरा का पूरा. सो देन आपको पता नहीं है कंपनी के स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, आपको टीम स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं नहीं पता है. यू विल नॉट हायर एन HR, यू विल नॉट पुट SOPs. आपका तब भी बसड़ में चल रहा था, अभी भी बसड़ में चल रहा है. सो एसेंशियली आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया आर नॉट येट, द कम्युनिटी इज नॉट येट मैच्योर इनफ to be smart and to do that. But having said that, hence we are noticing this beautiful movement, founders becoming creators. Yeah. A Shantanu running Bombay Shaving Company and also becoming this is a proven model कि मैं दोनों कर सकता हूँ. But then there's other way around as well, because if you see Super You by रणवीर इलाहाबादिया बोल रहा हूँ, रणवीर सिंह, ठीक है, वो भी एक अच्छा तरीका है बिकॉज हाईली एनर्जेटिक गाय, यही करना भी चाहिए. बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू ईमान गाजी, सेड कि यार मैं शेड्स पहनता हूँ इसीलिए मैं कल को शेड्स की कंपनी गाजी शुरू कर सकता हूँ. दीज ब्रांड्स दैट कम इन ये करते कुछ और, अचानक से इनको इसमें इंटरेस्ट आता है, 2 महीने के लिए इस पर बात करना शुरू करते हैं और तीसरे महीने ब्रांड आ चुका होता है. एवरीबडी कैन सी थ्रू इट कि तुम 2 महीने बात करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वो बन जाता है. आई थिंक अभी डेमोक्रेटाइजेशन इतना है. प्लस कॉपी यार, अब जैसे फोकस इनका ड्रिंक, फुकरा इंसान का ड्रिंक इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ प्राइम एज पर व्हाट आई हैव हर्ड, ठीक है. प्लस इट्स एक्सपेंसिव, नॉट मेड फॉर इंडियन मार्केट. नहीं, ये लोग सारे व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं ना. हाँ, सारे व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं क्योंकि जल्दी है. सबको मोनेटाइजेशन वाला गेम खेलना है कि यूट्यूब का आज कमाने का बस है कि जल्दी से आज कमाने का जल्दी से. दे डोंट अंडरस्टैंड कि पैसा दूसरी बार आता है, पहली बार में नहीं. 100% ट्रू. बट ओके, ये एक मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था कि वो मैथ कैसा दिखता है कि कंटेंट क्रिएटर का जो इनिशियल ऑडियंस है, जो वो चिल्ला के बोलते हैं 0 CAC, ये 6 महीने का शेल्फ लाइफ है, कब परफॉर्मेंस एंट्री करना चाहिए, कब वो मॉडल होना चाहिए एंड एवरीथिंग. एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इफ यू पुट देम इन एन एक्सेल शीट. व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी इज, क्रिएटर जब चालू कर रहा है कंपनी, वो डे 1 से ना ही बोले कि मेरी कंपनी है, बेस्ट है. आप अपने इक्विटी स्ट्रक्चर्स को पीछे रख के अगर बोलो कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई कंपनी चला रहा है, ग्रेट आइडिया, तो देन आपने क्या किया, और then you be hyper bullish and then promote you be that. hyper bullish and promote that. और 6 महीने बाद बोलो कि now I have also entered into exactly this. that is still staggered. आप थोड़ा डिसोसिएट रह सकते हो. आप जबरदस्ती का अपनी टीम के ऊपर वो बैगेज नहीं डालते हो कि इतना मेरी कंपनी बोल दिया ना कि मेरे बिना फेस के वो कंपनी चल ही नहीं पा रही है. प्लस ये भी है ना कि जैसे गौरव तनेजा केम इन एंड ही सेड कि पहले 10 घंटे में हमने ये सेल ला दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी ऑडियंस लेके आई है. इट्स नॉट प्रोडक्ट दैट वन. सो
और वो तुम 6 महीने बाद तुम्हें लगाना पड़ेगा हाँ, तो फिर इससे बेटर है कि तुम पीछे हो जाओ और बोलो कि मेरे भाई की कंपनी है, और फिर देखो कितने लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फिर प्रोडक्ट पे आई हैड अ चैट विद द टीम जब उन्होंने इनिशियली चालू किया था. आई वाज हैविंग अ चैट एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ पूछ रहे थे कि आप बताओ. सो दे वर आस्किंग कि आप हमें बताओ 1 साल का प्रोजेक्शन के हिसाब से कि गौरव का कब डिप्लीट होगा. मैंने कहा ये साला मैं तुम्हें फ्री में बताऊँ तुम्हें कि उसका कब डिप्लीट होगा, ये कब होगा, वो कब होगा एंड ऑल. एंड देन आई रियलाइज उनके बॉडी लैंग्वेज में उनकी टीम के पास भी वो बॉडी कॉम्प्लेक्स है. नहीं, गौरव के नाम पे तो आ ही जाएगा, गौरव के नाम पे तो आ ही जाएगा. तो आई वाज लाइक ये टॉप डाउन आता है, ये पूरा टॉप डाउन आता है. ये नहीं कि ओके ठीक है टॉप डाउन ही क्यों आता है. आपने अपने चैलेंजिंग वाला सीईओ लिया ही नहीं ना. आपने ही सोच के जो मेरे बात मानेगा वही टाइप का सीईओ लिया. आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं मनमोहन सिंह चाहिए बेसिकली. हाँ करेक्ट, कि मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक सीनियर बंदा लेके आता हूँ, ये तगड़ा करेगा. वैसे नहीं बन सकता. यस मैन बेसिकली. यू जस्ट नीड एन यस मैन एंड कोई ना कोई बना लेगा. बिजनेसमैन बिल्डिंग कंटेंट क्रिएशन दिख रहा है. निखिल कामत दिख रहा है, शांतनु दिख रहा है. Because then they approach it as business. Then they approach it as business as well. Reverse पता नहीं कौन निकालेगा, पता नहीं. मैं देख रहा हूँ डॉक्टर क्रिएटर्स निकाल रहे हैं. देयर इज सिद्धार्थ भार्गव, एक कंपनी लॉन्च किया है एनर्जाइज. एनर्जाइज में उसका कभी ब्रांडिंग एक बार देखना. वो एनर्जाइज को प्रेजेंट ये नहीं बोल रहा है एनर्जाइज बाय सिद्धार्थ भार्गव. एनर्जाइज में मैं और मेरी टीम और 5-10 डॉक्टर्स ने बहुत पावर लगाया है, जिसमें पहला पिक्चर इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर, नॉट हिम. उसके प्रोडक्ट में उसका नहीं है. मैं एनर्जाइज जस्ट खरीदा जस्ट टू चेक कि क्या प्रोडक्ट है एंड ऑल. पैकेजिंग में नहीं है उसका शक्ल. मेरे पास कोई ब्रोशर में नहीं आया कि ओके ठीक है मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी है. सो देर आर माइक्रो मार्केट्स वेयर स्पेशलिस्ट नीश पीपल आर डूइंग. बट ये जितने भी थोड़ा डिसोसिएशन जरूरी भी होता है, क्योंकि देन ना पीपल आर नॉट बाइंग प्रोडक्ट फॉर यू. करेक्ट, पीपल नीड टू बाय प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ. क्योंकि फिर वो 2 महीने बाद तुमको दिख जाएगा. और उसके बाद प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि शॉर्ट मनी में कि प्रोडक्ट खराब बनाते हैं और फिर वो बाहर आता है एंड देन एवरीबडी हैपेंड विथ दिस गाय, एनआर गाय. हाँ सेम थिंग हैपेंड. आई डोंट नो क्या सेल हो रहा है नहीं हो रहा है अभी, मुझे नहीं पता. मैंने जहाँ तक वो सुना था, बिकॉज तो अभी तो हाइप बहुत कम है. बहुत अब तो कम हो गई ना, क्योंकि फिर अब क्या है कि या तो तुम रुक जाते, क्योंकि तुमने जो व्लॉग्स वगैरह बनाए थे उसमें पूरा हाइप दिखाया है कि हम 2 साल से लगे हुए हैं. एक बार प्रोडक्ट हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमने लगा कि नहीं हम खराब प्रोडक्ट नहीं दे सकते. ये सब बोला है व्लॉग में कि हम खराब प्रोडक्ट नहीं दे सकते. एंड देन वी अगेन गॉट टू द ड्राइंग बोर्ड, मेड एवरीथिंग अगेन, एंड देन नाउ दैट्स द लॉन्च. Cut to after 10 days, Rohit or whatever his name is, he posted a video. please guy. नहीं रोहित, not that guy, जिसने मॉक किया इनके प्रोडक्ट. उसने वीडियो निकाली तो तुम्हारा जो बहुत सिनेमैटिक वीडियो बनाया था, मस्त बनाया था. तो उससे सही. तो उसने कट टू ये निकाला. उसके बाद तुम्हारे वो जो अनुराग बेसिकली आ रहे ना, अनुराग मार्केटिंग टीम का, कि वहाँ पे उनको यूज किया. और उसके बाद वो तो खैर पार्ट ऑफ इट, वो बच गया. लेकिन फिर यही है ना, तो फिर तुम ब्लॉग में पूरा माहौल बना रहे हो एंड देन दैट बिकम्स अ इशू. तो वही है ना कि ये सारी चीज़ें हैं. बट अगेन ये जस्ट बोल रहे थे तो मुझे एक सिचुएशन एक याद आया इसमें, और एक भी चीज़ मेंशन हुआ था. क्या वो बंदे का नाम है हाइफन इज अ कंपनी बाय कृति सनन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नाउ हाइफन का प्रोडक्ट मैंने भी यूज़ किया हुआ है जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. सेम कृति सनन बहुत बड़ी क्रिएटर है. वो पैकेज में नहीं लिखा है बाय कृति सनन, या कहीं पे बिलबोर्ड में नहीं चिल्ला के बोल रहे हैं बाय कृति सनन. बहुत सटल है बाय कृति सनन हुआ ये. लाइक व्हाट डू यू थिंक ब्रांड शुड डू राइट नाउ विद कंटेंट, एंड लाइक व्हाट डू यू सी एज द फ्यूचर इन द नेक्स्ट 5 years? लेट्स सपोज 5 years तो बहुत ज़्यादा है कंटेंट के लिए. नेक्स्ट 2 years लेट्स सपोज कि हाउ शुड ब्रांड अप्रोच कंटेंट इन जनरल? Again, let me start by saying hire right. Hiring is the first issue. The person who is the brand person. Okay, Zomato अगर Procter & Gamble से उठाएगा brand manager, probably they will not be able to understand social media and influencer marketing. So hiring becomes a big DNA of what you are selling. If you are a consumer internet company, the person that you have on the board needs to understand influencer marketing क्या होता है, new technology क्या होता है, पहला. Second, the person needs to have an Instagram account. I fucking hate जब ब्रांड मैनेजर्स के पास Instagram अकाउंट नहीं है, मतलब इतने लोगों के पास नहीं है और वो चौड़े बोलते हैं
मेरे को इंस्टाग्राम पसंद नहीं है, वो मेरा क्लियर रेड फ्लैग होता है कि साले तुम लोग इंस्टाग्राम कंज्यूम नहीं कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि तुम्हें देन ट्रेंड पता है एंड डोंट टेल मी कि तुम घर में जाके बिना इंस्टाग्राम के अच्छा इतना तुम्हारा शिद्दत है कि यूट्यूब में जाके ढूंढते हो इंस्टाग्राम में ट्रेंड क्या चल रहा है, इतना किसी के पास नहीं है। और यू विल नॉट बिलीव, मैं 50 ब्रांड मैनेजर्स के साथ अगर मैंने इंटरव्यू किया होगा इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, यार मिनिमम मुझे 5 से 10 लोग मिले होंगे जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है और धड़ल्ले से बोलते हैं मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मोस्टली करूँगी होता है बिकॉज इंस्टाग्राम मुझे पसंद नहीं है, एंड अप्लाइंग फॉर अ कंटेंट लीड रोल जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्ड करना है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। दैट इज द मेजर फर्स्ट प्लेस। द सेकेंड प्लेस इज डू नॉट, आई डोंट थिंक अभी जो मूवमेंट चल रहा है कि ब्रांड्स इंटरनली बनाएंगे कंटेंट, बिकॉज मैं कर चुका हूँ, मैं बेटर हाफ में अटेम्प्ट किया बनाना, आई फेल्ड मेजरेबली, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग टू डू दैट। उसका रीज़न ये है, एडिटर्स ब्रांड के ऑफिस में नहीं बैठेंगे। एडिटर्स बाय डिज़ाइन वो एजेंसी के ऑफिस में नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको लगता है मल्टीपल टाइप ऑफ काम है। तुम कह रहे हो ब्रांड का एक ही टाइप का काम वो दिन भर बैठ के करेंगे और ऑफिस में बैठ के पंच इन लगाएंगे, उसका पॉलिसी को ये करेंगे, HR के रंगोली में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब नहीं करेंगे वहाँ पे। Your directors, your creative writers will not sit in brand office, and hence it's a failed experiment to build an internal team out of here. This should be with an agency. Let it be with an agency. Just hire good mediators, I feel. Let the mediators be smart enough to figure out good agencies. Second, brands should stop having this thought कि हर 3-3 महीने में agency change करेंगे तो freshness आएगा. So I have heard a word called creative refresh as a term being used. कि मुझे लगता है मेरी एजेंसी का सीलिंग हिट हो गया है 3 महीने के अंदर। टू विच आई चैलेंज एंड से कि तुमने ब्रीफ दी है क्या? तुम्हारा काम है ब्रीफ देना, एजेंसी का काम नहीं है ऑटो पायलट मोड में तुम्हारा कंटेंट बनाना। बिकॉज अगर एजेंसी कर रही होती, तुम क्यों हो देन एग्जिस्टेंस पे? तुम्हारा काम सिर्फ रिटेनर। एजेंसी इज नॉट योर टीम, एजेंसी इज नॉट योर टीम एंड डोंट दे आर हेल्पिंग हैंड। लोग समझते नहीं है हेल्पिंग हैंड होना और टीम होने में अंतर है। करेक्ट। और ब्रांड्स ने पूरा का पूरा ले लिया है, मतलब चिंदी पे करके टीम बना के पूरा का पूरा निकालते हैं। एंड आई हैव नो रेस्पेक्ट फॉर द ब्रांड मैनेजर्स हु हैव जीरो से इन ब्रीफ बिल्डिंग, आइडिएशन, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग एंड एनीथिंग। एजेंसी से पूरा काम करवाता है और इनका खाली काम है कि रिटर्नर साइन करो, महीने का इनवॉइस बस क्लियर कर लो, उसमें भी 1000 पेमेंट्स डिले एंड ऑल। सो ये बहुत जल्दी फिक्स होना पड़ेगा। और ये फिक्स अगेन नाउ कमिंग टू द ऑल एग्जिस्टेंस। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि द प्रॉब्लम इन द मार्केट इज नंबर 1, आई डोंट ऑनेस्टली सी प्रॉब्लम इन द एजेंसी साइड ऑनेस्टली, बिकॉज एजेंसी साइड डेमोक्रेटाइज्ड है। ये माइक्रो मार्केट्स बनना इतना अच्छा चीज़ है बिकॉज एन पावर और ऑगिलवी के पास नहीं है, पहले था। पावर ये है, यू कैन स्टार्ट अ कंपनी बाय योर ओन एंड ऑगिलवी आपको उंगली नहीं करेगा, एंड यू कैन ऑल्सो नॉट डू उंगली एंड यू कैन एग्जिस्ट एंड ही विल ऑल्सो एग्जिस्ट और दे विल ऑल्सो एग्जिस्ट। यू विल हैव योर ओन मार्केट, चुपचाप 10 लाख भी बना सकते हो और घर में रह सकते हो, कोई किसी को धमकी नहीं देगा। Trust me when I say this, I have met enough people to know the history of Indian advertising agency. अगर ये आप बिल्ड कर रहे होते ना 2018 में, आपको 5th डे कॉल आता कोई लेगेसी कंपनी का, धमकी आती कि हम आपसे ब्रांड उठा लेंगे। They will do one phone call to the brand. एजेंसी कंपनी, सारे लेगेसी एजेंसी उतना पावर था। They will call the brand and they will say इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो नहीं तो हम सारे मैंडेट्स बंद कर देंगे। इनका इतना पावर है मार्केट के फुटहोल्ड में इसका। आज भी है बट आज कम है। आज मार्केट बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गया है इन दिस पर्टिकुलर केस। सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द ब्रांड टू चूज फ्रॉम। वॉट वी डोंट हैव इज अ गुड शॉर्टलिस्टिंग मॉडल फॉर द एरियाज टू बी चोजन फ्रॉम। सो हैंस दिस ट्रेनिंग नीड्स टू बी देयर। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन corporate trainings, launching a brand managers training, startup trainings as a service and stuff. In that case, मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। आई एम वेरी ओपन टू पार्टनर विथ मल्टीपल पीपल, को पार्टनर इंडिपेंडेंटली एज वेल। मैं बहुत सारा कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स को रीच आउट कर रहा हूँ। कोई गुजरात में अपना कर रहा है, आई एम लाइक कि साथ में कोर्स लॉन्च करें क्या वहाँ पे, या गुजरात के डायमंड सेक्टर को जाके ट्रेन करें क्या, वट एवर, बिकॉज आई नो यहीं पे ही सॉल्व होगा। और इसमें मेरा एजेंडा क्या है, जब तक ट्रेनिंग सॉल्व नहीं होता तब तक मैंडेट सॉल्व नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप मैंडेट सॉल्व करने के लिए प्राइस गिरा दो, आप मैंडेट सॉल्व करने के लिए आउटपुट बढ़ा दो, रिस्क बेटर खरीद लो, नहीं सॉल्व होने वाला। आई हैव रियलाइज इट द हार्ड वे, अगेन स्टेटिंग एज द फाइनल आउटपुट। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, बाहर अलग होगा, योर आउटपुट इज नॉट द डिसाइडर ऑफ क्लाइंट कितना लंबा टिकेगा, एंड दैट इज द
I don't know fortunate or unfortunate reality, but that is an unfortunate reality I feel, because then सारी चीज़ें merit पे judge नहीं हो रही हैं. There is a 70% area of merit, but there is a 30% area of soft skills where only industry folks, experienced folks will be able to win. Yeah. That is a good part and bad part as well. But yeah, What's next for you? What's next for you? I don't know. Learn, if I have to say 3 things to do, figure out tech in content, how tech, and so figure out basically how closer I can become to predict which content will work in any funnel. Which, and by content I mean every form of content. Music. Can I predict which part of Salim Suleiman's song to cut and make a reel out of it कि वो फटेगा? उस level पे prediction, and to do that, whatever tech or data is needed, I will put money, power, whatever is needed. That's it. Second is to learn and understand how to be better at P&L, how to be better at SOP building, how to be better at company building. Not really in marketing. मैंने marketing enough किया. अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ एज अ मार्केटर इंडिपेंडेंटली. आई ट्राई टू प्रैक्टिस वेर एवर आई कैन. देर आर वेज टू प्रैक्टिस दैट, बट आई विल नॉट ट्राई टू डू दैट इन कंपनी, बिकॉज वही वाला वो एग्जिस्टेंशियल डिसोनेंस कि आप अपना मार्केटर अगर निकाल दोगे कंपनी के अंदर, देन कंपनी बिल्डिंग प्रोसेस पे हिंड्रेंस आएगा इन दैट केस. एंड इट इज़ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट व्हेन you are the chief strategy officer and the CEO as well. It is where you have to find a balance of what is right and what is right for the company, what is right for the brand, what is right for the business and the market as well. That is second. And third is just invent and figure out new formats of content, whatever that content can be. Like for an example, Jubilee channel पता होगा. Have you watched Jubilee channel? Very interesting channel. I am trying to shoot some content in my office as well. 2 people having a chat. नेचुरल एक्सपेंशन क्या है, लोग क्या करते हैं, 5 लोग ले आएंगे, पॉडकास्ट हो गया. ये नेचुरल दिमाग यहीं तक चलता है लोगों का. जुबिली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जुबिली में क्या है, द पैकेजिंग विल बी क्रिएटिव डायरेक्टर वर्सेस राइटर. पैकेजिंग एक बजर चल रहा है, 10 लोग बैठे हैं फ्लैग लेके. इट्स अ पॉडकास्ट विच इज़ पैकेज्ड एज अ डिबेट, जहाँ पे मैं चालू करूँगा बोल के कि आई डोंट थिंक राइटर्स आर गुड, राइटर्स आर जस्ट फेल पोइट्स. देन यू विल काउंटर, देन लोग हूट करेंगे. सो एसेंशियली पॉडकास्ट के ऊपर इट्स अ रैप बैटल. इट्स अ रैप बैटल इन इंडस्ट्री, एंड यू आर लाइक ओ and ready 2 million. So the most famous one is Jordan Peterson wala. So there is Jordan Peterson versus atheist. That's the page. ये 10 एथीस्ट बैठे होंगे और वो काउंटर कर रहा है, और वो चल रहा है, टाइमर चल रहा है, 2 घंटे का चल रहा है. 2 घंटे का डिबेट विथ स्टूडेंट्स ऑन दिस. ए वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. आई लव बिल्डिंग दिस फॉर्मेट. इट्स अ डैम गुड फॉर्मेट. सो आई एम लाइक, लेट्स इन्वेंट न्यू फॉर्मेट्स. मज़ा आएगा. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, इमेजिन वी वर एबल टू, सो आई हैव अ फॉर्मेट इन माई हेड कॉल्ड ब्रेक डाउन, मुझे लगता है. और वो ब्रेक डाउन क्या है पता है, मैं एक सैंडबॉक्स लूँगा यहाँ पे. वी बोथ पिक अप अ सर्टन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लेट्स से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फुकरा इंसान का व्यूज डाउन जा रहा है. लेट्स से जब तक सैंड कम नहीं होता, फटाफट वी आर जस्ट सही कि ओके ये नंबर ये है, अरे भाई वो नंबर निकाल. सो इट्स जस्ट 2 people ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे डिकोड करना है. अब ये क्या है, ये लर्निंग मैकेनिज्म है. सो पीपल इससे सीखेंगे कि ओके एनालिसिस कैसा होता है, एंड दिस ऑल्सो सटली सिग्नल्स दैट यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर अ स्ट्रैटेजिस्ट. मुझे P2C करने की जरूरत नहीं है. These are the 5 top ways to do analysis. On that note, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. I hope you liked the conversation. Oh, awesome. Good chat. बस यही है, and thank you so much for dropping in. Hey, thanks. बहुत मजा आया. Same. And guys, I'll see you on the next episode. Bye bye.